Yeah, we are live. Sabhi ko Zindabad, a very warm welcome to all of you to the Grounded Voices series of the NAPM, the National Alliance of People's Movements. And we are talking today about a very important issue which relates to political party funding, electoral bonds. The title of today's discussion is Electoral Bonds, a Threat to Democracy. That's the question that we are asking our panelists. We have a very esteemed set of panelists today who will be talking to us about this issue. This will be bilingual. We know that people from different movements across the country have joined us, will be joining us, will be watching this on Facebook as well. So this will be bilingual for the speakers who are speaking in one language, either English or Hindi. I'll provide a quick translation as well. We know that money power is one of the biggest infirmities in the electoral political process and system in our country. It's one of the biggest challenges that we face. And the influence, the kind of influence that money has on the electoral results is also something that is not hidden from any of us. It's very concerning. And what is even more concerning is that political parties are very cognizant of the fact that the more money they can amass before elections, the better their chances are at being able to ensure victory. So there is a great desire to accumulate money, to accumulate resources. And money is then brought in from sources which also have very deep-rooted vested interests. So those people, those organizations, those corporates who are giving money to political parties are very cognizant of the fact that they want a quid pro quo. So they want something in return. They're not doing this for nothing. Political parties are finally at the heart of electoral politics. They form governments when they win. The governments of the day, which means those political parties that win, form policies, they form legislations, they are responsible for a whole host of activities which many corporates, many individuals and organizations would wish to control and to have a say in. So when money comes into a political party, it's not a simple, just simply some money coming into any organization. It is finally money which is going to determine how a political party is going to perform, who the political party will finally work for if it comes into power. Which is why it is so important to have transparency, to ensure that people have the right to know who is funding political parties. Because finally, as a citizen, if I go to vote, unless I know who is funding which political party, it becomes almost like a blind vote. It becomes meaningless. My exercise of my right to vote becomes meaningless to a very large extent. And therefore, in various judgments, the Supreme Court, the judiciary has held that people have a right to know. They have a right to know things about how political parties are being funded. And in our democracy, we have seen how critical it is for people to have this sort of information. Now, the problem that we've had is that under the Income Tax Act, any political party which receives a donation of less than 20,000 rupees did not have to declare the source of their donation, did not have to declare who gave them that donation.
And so what political parties were systematically doing was that they were breaking up large donations into smaller donations of less than 20,000 rupees, and thereby saying that they don't have to tell us the source of income. So if some political party, let's say, were to get 100 crore rupees from a corporate organization, then they could simply, it was just an accounting factor. They could get creative accountants to make thousands of receipts of 19,990 and just say that these are the donations we've got. We don't have to tell you where we've got the money from. So as a result, citizens were in the dark. They did not know what the sources of income of these political parties were. So what was really required was to get rid of this particular clause, to say that all donations to political parties, whether in cash or through check or any other means, and of any denomination, they should have to tell people where the money has come from. The source of donation has to be told to people. That was all that was needed. When the BJP fought elections in 2014, they promised that they will bring greater transparency in political party funding. So when finally the electoral bond scheme was announced by the then finance minister, Mr. Arun Jaitley, he said that we are bringing in the electoral bonds to infuse transparency in the political party funding. And there was a lot of hope. People thought that finally some positive steps will be taken. Unfortunately, the way in which the electoral bond scheme has been unfolded has basically opened the floodgates for large anonymous political party funding. There were 4 laws that were amended. The first law that was amended was the RBI Act, under which basically any scheduled bank could issue an electoral bond. The Representation of People's Act was amended, and it basically excluded electoral bonds from the report which every political party is required to furnish to the Election Commission regarding details of contributions that it gets. So the RP Act was amended to enable political parties to get electoral bonds, and not any amount of money using electoral bonds, but not tell the Election Commission and report to the Election Commission. The Income Tax Act was also amended. All that they did was that instead of 20,000 rupees, which was the cap for not declaring your donations, the cap was reduced to 2,000 rupees, which really made no difference. Creative accountants had to now just say, instead of making receipts of 19,990, they made receipts of 1,990 and did the same thing. So 10 times the number of receipts had to be made. And the Income Tax Act also basically said that any money that's received through electoral bonds is exempted from the requirement of disclosure in the annual return to be filed by a political party for the benefit of tax exemption. And finally, the Companies Act was also amended. And this was a big, big blow, because under the Companies Act, no company could donate more than 7.5% of the average net profits of the last 3 years to any political party. That cap was gotten rid of. So any company can give as much money, even 100%, to a political party, which basically means that it enables the setting up of shell companies through which money can be routed. So we have a situation here where, we have a situation here now where through electoral bonds, basically people don't have a right to know where money is coming into political parties from. The anonymity of electoral bonds ensures that the electorate, the citizens who go to vote, will no longer have the right to information on who is giving money to which political party and how much money they're giving. Also, opposition parties will have no way of finding out. But what the government said is that there are a lot of people who give money in black.
in cash because they are worried, they're scared that the government will come after them if they give money to an opposition party. And yet there are investigative journalists like Poonam, who then went on to find out, investigate and find out that every electoral bond has, an alphanumeric number, which is visible under UV light, which basically means that the government can track these bonds. So it is no surprise that when we look at the bonds and how much money has gone to which political party, it is basically the BJP, the party in power, which forms the government, that has got more than 70% of the bonds so far. So more than 10,000 crore rupees have changed hands through electoral bonds. We have Commodore Batra with us also, who will be giving us figures, which he keeps pulling out regularly using the Right to Information Act. And just before the UP elections, in the 2 months prior to the elections, 1,200 crore rupees worth of electoral bonds were bought and given to political parties. So we are talking about huge amount of money which is changing hands, which is going to political parties, and which as citizens we have no information about. So we are going to talk about the implications of this and how this poses a threat to our democracy. मैं बहुत संक्षिप्त में हिंदी में ये बात रख देती हूँ। आज हम इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, लोगों का राज है, लोग जाकर चुनाव में वोट करते हैं, उस वोट का क्या मायने है अगर लोगों को मालूम ही नहीं हो कि वो जिस पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं उन पार्टीज को कहां से पैसा आ रहा है। हम जानते हैं कि पैसे के दम पर चुनाव लड़े जाते हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनके पास खूब चंदा आता है, वो उसका इस्तेमाल करती हैं, जीतती हैं। और जो लोग ऐसी पार्टियों को पैसे देते हैं, बड़े कॉर्पोरेट स्पेशली जो पैसे देते हैं, वो किसी अपने मन की कोई भलाई से नहीं दे रहे हैं। वो एक प्योर ट्रांजैक्शन है। वो पैसे देते हैं पार्टी को और उम्मीद करते हैं कि पार्टी जब जीतेगी तो उनके लिए काम करेगी, उनके लिए नीतियां बनाएगी, उनके लिए कानून बनाएगी, ना कि लोगों के लिए। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को जानकारी हो कि ये पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आता है। एक बड़ी समस्या जो पहले थी वो ये थी कि 20,000 रुपए से कम की जहां पर भी फंडिंग आती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, इनकम टैक्स एक्ट के तहत उन्हें जरूरत नहीं थी ये बताने की कि कहां से पैसे आ रहे हैं। तो उस कारण से सारी पार्टियां बड़े बड़े चंदा इकट्ठा करती थी, करोड़ों करोड़ों में, लेकिन उनके अकाउंटेंट उसको ब्रेक डाउन करके बोलते थे कि हम तो 19,990 रुपए का चंदा ले रहे हैं बहुत सारी जगहों से, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है हम किससे पैसे ले रहे हैं। तो लोग अंधेरे में रहते थे, उन्हें सूचना नहीं होती थी। और जरूरत केवल ये थी कि कानून में संशोधन ये किया जाए इनकम टैक्स एक्ट में कि कितना भी कम पैसा, ज्यादा पैसा कैश से वाइड में जैसे भी आएगा किसी भी पार्टी के पास, लोगों को तुरंत जानकारी देनी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना देनी होगी कि वो कहाँ से आ रहा है पैसा, सभी सोर्सेज ऑफ इनकम। जब बीजेपी ने 2014 में चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में पारदर्शिता बढ़ाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब अनाउंस किया गया पार्लियामेंट में, तब जो फाइनेंस वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ला रहे हैं, इससे हम पारदर्शिता बढ़ाएंगे। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए तो बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। पूरी तरह से इलेक्टोरल चुनावी बॉन्डों ने ये पूरा बांध खोल दिया कि जितना मर्जी चंदा चाहे कोई भी दे सकता है बिना किसी को बताए हुए। पॉलिटिकल पार्टीज किसी को ना बताने की जरूरत है, उन्हें ना जो पैसा दे रहे हैं उनको बताने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि लोगों के सूचना के अधिकार पर सीधा चोट पहुंचाई गई और 4 कानूनों को संशोधित कर दिया गया, आरबीआई एक्ट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट को और कंपनीज एक्ट को। और ये जो संशोधन किए गए, इसके थ्रू ये इंश्योर किया गया कि कोई भी
कितना भी चंदा दें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो किसी को पता नहीं चलेगा, ना तो किसी ऑपोजिशन पार्टी को पता चलेगा, ना हमें आपको पता चलेगा, देश के नागरिकों को पता नहीं चलेगा कि वो चंदा किसने दिया और कितना दिया और किस पार्टी को दिया। लेकिन पूनम जैसे हमारे साथ आज जर्नलिस्ट बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, जिन्होंने इस पर काम भी किया है, और मालूम क्या पड़ा कि सरकार ने एक नंबर लिख दिया है बॉन्ड, चुनावी बॉन्डों पर, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट में नजर आता है। तो सरकार तो सब ट्रेस कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई पैसा देते हैं चुनावी बॉन्ड के थ्रू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो सरकार को मालूम है कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। साथ ही में एसबीआई जो है वो बॉन्ड देती है। एसबीआई तो गवर्नमेंट की ही बैंक है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है ये पता लगाने में कि किसने किसको पैसा दिया। तो जाहिर है कि ज्यादातर पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो पैसा बीजेपी को ही जा रहा है। 70% पैसा अभी तक से ज्यादा बीजेपी को गया है। 10,000 से ज्यादा करोड़, 10,000 करोड़ से ज्यादा बॉन्ड्स के थ्रू पैसे ट्रांसफर हुए हैं। 1,200 करोड़ तो केवल यूपी के चुनाव से पहले ही 2 महीने के अंदर ट्रांसफर हुए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर है। इसके ऊपर आज बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया पैनल है, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने आरटीआई में एप्लीकेशन लगा के सूचना निकाली है। हमारे साथ लॉयर हैं जो इसके ऊपर कानूनी बात कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो कि कोर्ट गए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, कहकर के ये तो लोकतंत्र पर सीधी चोट है। और हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं जो इसको उजागर करते आए हैं लगातार। तो मैं सबसे पहले पूनम अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। पूनम, आप 15 मिनट में अपनी बात रखें। पूनम ने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सक्रिय रूप से काम किया है, जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के काम है। आज की पत्रकारिता में जहां लोग घबराते हैं सरकारों को आईना दिखाने से, पूनम डरती नहीं है और अपनी बात करती भी है, रखती भी है, लिखती भी है, बोलती भी है। और ये सारे मुद्दों के ऊपर पूनम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर अपनी बात को इन्वेस्टिगेट करके लोगों तक पहुंचाती हैं। पूनम, आप प्लीज अपनी बात रखें, एंड इफ यू स्पीक इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस आई विल ट्रांसलेट very quickly later. Thanks. Thank you so much, Anjali, for the brilliant introduction as well as the brief that you have given on electoral bonds. It's absolutely brilliant, and it actually spoke everything about electoral bonds. So मैं दोनों language में बात कर सकती हूँ. Should I go for a mix? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो, वो ज्यादा सही रहेगा. So electoral bonds के बारे में Anjali has already told us what it is, उसका क्या काम है, क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, कब लाए. तो the main thing is that when electoral bonds was introduced, the basis that was given by the former finance minister Arun Jaitley was that it will keep the anonymity of the donor. And the reason that it given behind it कि anonymity से होगा कि जो भी चंदा दे रहा है उसको किसी भी तरह से आर्म ट्विस्ट ना किया जाए ऑपोजिशन पार्टी से. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर चंदा जा रहा है बीजेपी के पास, तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग उसे आर्म ट्विस्ट ना करे कि नहीं हमें चंदा दो, या कांग्रेस या किसी और पार्टी के पास जा रहा है तो वो बीजेपी ना उसको बोले कि हमें चंदा दो, तुमने उसे क्यों चंदा दिया. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय आर्म ट्विस्टिंग. एंड एनोनिमिटी से another reason which was given by the government was कि एनोनिमिटी रहने से एक डोनर्स में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम चंदा दे रहे हैं जिस भी पार्टी को, उससे एटलीस्ट हम फोरफ्रंट में नहीं आएंगे, हमारा नाम आइडेंटिटी बाहर नहीं आएगा. बट दैट वाज नॉट द केस. जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तब हमारे इन्वेस्टिगेशन का मेन बेसिस ये था कि एक्चुअली में क्या डोनर्स की एनोनिमिटी रखी जा रही है.
So what we found that is that it's not the truth. Anjali has already pointed out there is a hidden alphanumeric number in it which is not visible to our naked eyes. आप अगर इलेक्ट्रोल हाथ में लेंगे बॉन्ड को तो आप वो नहीं देख सकते. तो जब मैंने पहली बार खरीदा तो मुझे भी नहीं दिखाई दिया. हमें इस नंबर के बारे में तब पता चला जब हमने इसको फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा. फोरेंसिक टेस्ट में ये पता चला कि ये एक यूनिक नंबर है, यानी कि हर एक बॉन्ड में अलग अलग नंबर्स हैं, which clearly shows that the numbers are being kept hidden so that the public do not know and the donor doesn't know that his identity is actually being tracked. तो वो जब हमें पता चला तो हमने एक नहीं 2-3 बॉन्ड्स खरीदे ताकि हम एटलीस्ट श्योर हो जाएं कि ये यूनिक है. तो जब हमने ये चीज सामने लाई अपने स्टोरीज के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, हमने गवर्नमेंट से भी पूछा कि आप तो इसमें यूनिक नंबर है, आप कह रहे हो कि हम ट्रैक नहीं कर रहे, कोई कुछ नंबर नहीं है जिससे ट्रैक किया जा सकता है. उस समय ये डिफेंस दिया गवर्नमेंट ने कि हम ये रख रहे हैं ताकि SBI जो कि नोडल बैंक है, who can only sell the bonds and who can only redeem the bonds, वो इसलिए रख रहे हैं ताकि वो उसकी ऑडिट कर सके, so that they can catch that whether there is any fake bond circulation or not. So this was the defense given by the government. But the fact that the government never told this to the people that there is a hidden number. Interestingly, when I showed this bond to one former senior RBI official, he said that he had not come across anything of this sort in his entire career. Moreover, he said that there is nothing hidden in the currency note. So what was the need for the government to make this number, hidden from the public? And moreover, this fact that the government claimed that the identity will not be revealed, that's not the truth. The government can anytime track the person, the donor, to whom he is giving the donation. So the entire basis of this, of the introduction of electoral bonds fell flat. The point that the anonymity will be maintained did not stand at all. So this is very important. Another important thing is that the government will be able to know who is donating to whom, but we, the people, will not know ever who are the donors. So that is very important, because let's not forget political funding. We have to know who is donating to which political party, because this funding generally goes as bribe through corporates. So just to hide that who is donating it to the government, there were efforts made by the government that nobody knows. Until date, we do not know. Moreover, Anjali has already pointed out that the political parties, they do not have to reveal the names of the electoral bonds. Now, election commission. Now, election commission is the election body that needs to know everything. Why to hide it from the election commission? So this entire opacity, non-transparent scheme, which is actually helping those who want to bribe the government or anybody else and getting their job done. And already Anjali has said that the BJP is the biggest political party who has got the maximum amount of donation, but we till date do not know who has actually given the BJP that at least 65% of the donation so far made through electoral bonds. So this is one very important thing, important scheme, which has become a tool to not just to give donation, but also to bribe to the government. And nobody would ever know who is the receiver and who is the donor. Secondly, the matter is already in the Supreme Court. When this entire matter was taken up by the by ADR in front of the Supreme Court said that the all political parties who have received the electoral bonds as donation, they need to give out the details to the Supreme Court in sealed cover. The matter was heard in 2019. We are in 2022. Till date, those sealed covers have not been opened. Till date, we do not know what is written in those sealed covers. Till date, the Supreme Court never bothered to hear such an important scheme. And in past 2-3 years, already we have seen so many, state elections have gone by. The donations were made in crores of rupees, especially during the Uttar Pradesh elections. We do not know who the donors are.
as a citizen, it's our right to know every bit of money that is going from corporates to the political party. So the scheme itself, it seems that it was made just to protect the donors, and especially those who want to bribe the government and get their things done. So this is what is the major flaw that we have seen. And unfortunately, the Supreme Court has also not heard the matter for the past 2-3 years, although it needs an urgent hearing. Because this is one scheme which cannot continue for long. And if it continues, then it will definitely benefit the donors and the donee. And we will never come to know who are actually benefiting through this scheme. That's it. Anjali. Thank you so much, Poonam. बहुत बहुत शुक्रिया. और पूनम ने अपनी बात हिंदी इंग्लिश दोनों में रखी, तो मैं कोई लंबी ट्रांसलेशन की जरूरत भी नहीं है, तो शुक्रिया पूनम. पर आपने जो एक मेन मुद्दा जिसको आपने हाईलाइट किया है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने के पीछे जो एक बड़ी चीज सरकार ने कही थी वो ये थी, और पार्लियामेंट में ये स्कीम जब लाई गई, 4 कानूनों का संशोधन हुआ, तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने ये कहा था कि हम इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये गोपनीयता इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो पैसे देते हैं वो डरते हैं कि हम अगर एक पार्टी को पैसा देंगे तो बाकी पार्टियां हमारे पीछे पड़ जाएंगी, एंड स्पेशली कि अगर हम किसी ऑपोजिशन पार्टी को पैसे देंगे तो जो हम देश की जो सरकार है, सरकार के पास तो बड़े तंत्र होते हैं, तो सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी. तो इसलिए हम उन लोगों को गोपनीयता देना चाहते हैं, उनको कोई तकलीफ ना दे सके, इसलिए गोपनीयता रहेगी. लेकिन जो पूनम ने काम किया सारा वो यही बताया उन्होंने कि जो फोरेंसिक्स कराए, जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और रिसर्च करी और इन्वेस्टिगेशन करी, उससे समझ में आया कि एक यूनिक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया जा रहा है हर एक बॉन्ड को. तो वो सबसे बड़ा सवाल पूनम ने यही कहा कि भाई क्या जरूरत है, किसी एक करेंसी नोट पे या किसी नोट पे तो यूनिक नंबर नहीं देते हैं, तो बॉन्ड पे यूनिक नंबर देने का क्या कारण है? एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ट्रैक करना चाहती है इन बॉन्ड्स को. तो मतलब जिस तथ्य पे सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई वो ही तथ्य खड़ा नहीं रह पा रहा है, और जो पूरा बेसिस है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने का वो इट हैज फॉलन फ्लैट. और पूनम ने ये बताया कि इसी कारण से आज हम ये भी देखते हैं कि 65% से ज्यादा जो बॉन्ड्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूनम ने चिंता व्यक्त की कि ये मामला 2017 से कोर्ट में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में, इतना गंभीर मामला है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सुनवाई नहीं हुई. जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए. दिस इशू raises some very grave issues for the electoral bond scheme, raises some very grave issues for the future of our democracy. ये कह दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने. लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है उसके ऊपर अभी तक कोई जजमेंट नहीं आई है. जब स्टे मांगा गया, स्टे भी नहीं दिया गया है. तो एक तरह से जुडिशरी जो है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा करे, हमारे अधिकारों की रक्षा करे, वो उस that judiciary seems to be letting people down, letting transparency down somewhere. And therefore, at this point, I would like to invite Neha. Neha Rathi is with us. Neha Supreme Court में जो ये पूरा मामला है उसमें involved हैं, lawyer हैं नेहा, और बहुत सारे public interest के issues पर नेहा लगातार अपनी बात रखती भी हैं और उन पर काम करती हैं हम सभी लोगों के लिए ऑन दिस पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स, जिसमें से एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी मुद्दा है. तो हम नेहा से रिक्वेस्ट करते हैं कि नेहा, अगर आप एक
क्रोनोलॉजी भी दे दे हमें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लटका है 2017 से, जिससे कि हम सब समझ सके कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। और अगर आप उस केस के बारे में भी थोड़ी हमारे साथ चर्चा कर सकें, आई एम रिक्वेस्टिंग नेहा टू टॉक टू अस, गिव अस अ chronology of the way in which the case has moved in the Supreme Court since 2017. Unfortunately, there hasn't been any judgment in the electoral bonds matter, despite it being such an important issue of public interest in our democracy. And if she can tell us a little bit about what is happening in the case as well. Neha, the floor is yours for the next 15 minutes. Hi, Anjali. Thank you for the introduction. You have covered a lot about the basics about electoral bonds. So I'll just try to keep it brief and give basic introduction and also about what's happening at the court. So when electoral bonds were introduced in March 2017, basically as part of the Budget Finance Act 2017 was amended. 4 major amendments were made. First, in the RBI Act, in the Representation of Peoples Act, in the Income Tax Act, and in the Companies Act. Mainly, all these amendments led to a situation that has now opened floodgates of unaccounted money that can be donated into the political system. Just 1 second, I have a 1 second. Yes. So, now we filed this petition at the time when even the scheme was not introduced. Electoral bond scheme was introduced in 2018. The Finance Act was amended in 2017. We filed the petition in 2017 only, where in the prayers we challenged all these amendments, these 4 amendments that were brought in. The first amendment in the RBI Act was mainly to introduce the term that there will be something called a bearer bond or a promissory bond sort of a thing, which will be electoral bond. In the Companies Act, earlier, while there used to be a 7.5% cap that any company can donate only till 7.5% of its net annual profits in the last 3 years, now that cap was completely removed. In the Income Tax Act, the political parties are completely exempted from any income tax on the donations that they received. And in the Representation of Peoples Act, another very important amendment was made in section 29C, which required that all political parties have to give details about all donations that they received. In this, an amendment was a provision, an exception was actually brought in to say that these political parties need not give any details of any donations received through electoral bonds. So the crux of it is this, that any political party can receive as much funding from any company or any individual, which that political party does not need to tell anybody. It can be done totally anonymously. And similarly, any individual or any company can make as much donation to any political party, and in their profit and loss statement, while earlier they were supposed to tell which political party, now they don't need to tell which party they needed to donate it to. So we challenged all these 4 amendments, because it was a constitutional challenge to these amendments, and we filed this petition under Article 32 in the Supreme Court directly. It was filed in November. It was filed in November or October 2017, in which notice was issued then and there. But after that, we have seen that even though 15-16 times the matter was listed, only 2 effective hearings, one can say, have taken place, and various urgency applications have been filed to get the matter listed, even after years of it being having been filed. So in January 2018, then the scheme came. In April 2019, finally, when the matter was heard for the first time, so already almost 1.5 years had passed. In April 2019, the first interim order of the Supreme Court came by Chief Justice Gogoi. It was a 3-judge bench. He basically said, and I would quote, they agreed that, as you actually also said, they agreed that the matter was very, very weighty. So it was said that all we would like to state at the present is that the rival contentions give rise to weighty issues which have a tremendous bearing on the sanctity of the electoral process in the country. Such weighty issues would require an in-depth hearing, which cannot be concluded.
And therefore, they passed one direction that all political parties would have to give details of the donations they receive through electoral bonds to the Election Commission of India in sealed cover. So this is also part of that glorious sealed cover jurisprudence of Justice Gogoi. So, this direction was given. They were supposed to also give it till 31st May 2017, 2019, whatever donations they have received, but it was never really followed by the political parties also, that we'll come to know later. So then we then filed an application for stay, basically seeking that a stay should be given to the political, this electoral bond scheme, which said that for 4 months in a year, for 10 days each, electoral bond sale window will be opened by the SBI, and companies and individuals can purchase these bonds, and they can then take them physically to the political party, which can then get them encashed in the next 15 days. So there was a 15-day period. We filed an application for stay of the scheme. In this, we also showed them that because we had then come to know through our RTI activist friends, and we came to know that the Election Commission and the RBI had also in very serious terms had objected in 2017 itself, when the government had asked them what are their views before the passing of the Finance Act. They had very strict terms mein RBI and EC said that this is a retrograde step. This can lead to shell companies and Benami companies being opened. This will lead to unaccounted money in political parties, which is something that we should actually not be going towards. RBI even said this will hamper the integrity of and reputation of the RBI. So what the Election Commission said, if I may quote a little bit, so they said that amendments brought through Finance Act 2017 will have a serious impact on transparency aspect of political finance and funding of political parties. They further said that the amendment brought in Section 29C of the Representation of People's Act, about that they said that any donation received by political parties through an electoral bond by the amendment has been taken out of the ambit of reporting under 29C. Therefore, this is a retrograde step as far as transparency of donations is concerned, and this proviso needs to be withdrawn. The government concealed this very important fact from the public. It was not even brought out by the Election Commission, which was party in our case. It was only after it came out in the media that quickly Election Commission then filed an affidavit and brought this letter of 26 May 2017 out in public, which was actually embarrassing for the government. So then about the RBI, this actually came later, but it's also now there. RBI also said that this will give rise to a lot of anonymous trail, and it will also result in money laundering. So RBI also unequivocally said that this is not the right way to go about it, especially in physical form, that is in script form. This should not be allowed to be given a go ahead. But the government obviously did not at that time in 2017 listen to these words of advice given by RBI and EC, concealed them from the public, from the media, everybody. Even in the parliament, a question was asked whether there has any concerns have been raised by anyone at the government. The cabinet minister for state gave a reply saying that no such concern was raised at that time, which is a blatant lie that was being told. All these things we brought to the notice of the court through this our stay application, wherein we were seeking that this electoral bond scheme there should be a stay on it. No more further sale of electoral bond should be allowed. These windows periods should not be opened any further. I think at that time around 13 or 14 tranches of electoral bond sale had been opened. So almost 2 years passed. This application was not even listed, let alone heard. It was not even listed. Then again in April 2021, we filed another application for direction this time, because in 5 states elections were coming up and sale windows were being opened. By now we already knew that 95% of the funds are going to the ruling party.
all so many tranches had been opened. By that time, I think 18 tranches had been opened. 95% of funds were going to the BJP. Other political parties were also raising voice about it. And we also came to know through our RTI activists, the disclosures, that almost 99% of the funds were actually in 10 lakhs or 1 crore denomination. So clearly it was not a Aam Aadmi was actually buying these electoral bonds. These were companies which were buying these bonds and then giving it obviously for some kind of a quid pro quo, some kind of a benefit to be accrued to them. So then this other second, this interim, this order, one would say came up, in which the stay application of a stay application was rejected. But it's very interesting that it seems one look at the order and it seems that maybe the entire issue, the extent to which it hampers democracy, the extent to which it can lead to corruption in political funding was not even understood. So the court actually said, and just one line if I would read, they actually said that that since the scheme, that is the electoral bond scheme, that since it mandates political parties to file their statements and accounts and all they need to file, and that the company also needs to file that, and banking channels are used, therefore all that is required to know who gave how much to whom, that you just need to do some kind of a match the following. So this is quite funny because this is actually not possible, because these are sold in denominations of 10 lakh or 1 crore. So for example, one political party will just disclose that, okay, we got 50 lakh or we got 5 crore of donation, we got 50 crore of donation. So that is it. They don't have to say, and even if the denominations are same, so there are 10 entries of 1 crore each, for example, for a political party, how can they match with which individual gave it to? So today, if Adani or Ambani has donated so and so, we don't know which political party they've given those donations to, and whether or not there has been some kind of a benefit that has accrued to them. So there is complete lack of transparency currently. 19 tranches have been 19 or 20 maybe now. So so it seems that there's a complete ignorance. The court selectively also chose to just quote from the RBI objection, the letters from RBI, where repeatedly the RBI was also, the governor of RBI was writing to them and objecting. They selectively quoted and said, no, in principle, RBI and EC are not objecting, because obviously RBI and EC are not as independent as we would like them to be. In the court, they did show their letters, but they said that no, in principle, we don't want a stay, because it will mean that we are going back to the previous situation where cash donations were taking place. So basically, this was the outcome of our case. So far, the case is pending, thankfully. The case is still pending. Recently, again, then we filed almost 3 urgent hearing applications. One, Mr. Prashant Bhushan, he appeared physically recently, where Justice Ramanna said that, yes, we want to hear this matter. We understand it is important. Because of COVID, we couldn't hear it. But even then, the matter is now listed for in July, I think 18 July. But more and more, the matter just keeps getting dropped. It gets deleted. The date gets postponed. So we are actually at it every time a window is opened, we file an urgency application that it should be listed. So the grounds why, a brief thing about the grounds on which the petition was filed. The first was that the first obviously was the right to information, which is a part of freedom of speech and expression. It is a settled law. There have been many judgments about it. So that that obviously it does not come under reasonable restrictions. So Article 19 is about freedom. Article 19(1) is right to freedom of speech and expression, under which right to information is understood to come in. The 19(2) talks about certain reasonable restrictions, where Article 19(1) can be restricted or limited. So this was our first ground, where we said that obviously this is part of right to information. This is very important information that each individual of this country must have. Only when they have this information, they can cast their vote intelligently. And this was also the basis of all other judgments of Association for Democratic Reforms, Common Cause, etc., where also they
said that, for example, criminal antecedents of politician should be known. Yeah, there should be a limit to how much you can spend. The main basis of this is the same. So then the second ground that we filed this petition on was that this entire, the Finance Act of 2017 was passed by bypassing Lok Sabha as a money bill. So you cannot pass any act as a money bill. You can only pass certain acts or certain bills as money bills, where you can show that there is actually some kind of a imposition of a tax or abolition of a tax, where money is being borrowed from the, what one says, consolidated funds of India, or the money that is the public money. Only those kind of bills can be passed as money, can be tabled as money bills. But in this case, surreptitiously, they could have also passed a legislation to bring about this thing. No discussion was taken place. So we also placed this as a ground for challenging these amendments, that the entire route that it took was actually not fair. It violated Article 110, 109 of the Constitution of India. Other was that that it also the way it opens floodgates of political unlimited donations, and also how donations can be made now by unlimited donations can be made by foreign companies in India. Because 1 year back in 2016 also they had brought about another amendment by which foreign companies can now donate unlimited amounts in India, because of this cap is also. So all a foreign company needs to do is have a stake in an Indian company, make Indian company a subsidiary, and then they can donate to these political parties, and that donation can be unlimited. So obviously the Neha, we can't hear you. I'm sorry, I cannot. Yeah, now you're audible. Now you're audible again. Well, actually, there's an electricity cut here. Yeah. Yeah, so basically any foreign company can make an unlimited donation. All they have to do is do it through a subsidiary in India. All this was also brought very surreptitiously by the government. So these were the major grounds that we also, of course, the judgments and the normal legal way that we have those grounds, that there are already these judgments all throughout. The way forward was that slowly we were coming through court orders, through RTIs. We were trying to open channels where transparency would be the main thing for political parties, for politicians, etc. But these amendments and this introduction of electoral bond is actually completely brazen. Now there is nothing to be nothing is hidden. That obviously what is the objective. It was clearly, even though the then finance minister, as you have also pointed out, said that it is to curb black money, it has actually brought in unlimited black money into the political sphere. Obviously whichever political party is in power, it can decide which policies will be passed, and there is a clear conflict of interest, clear quid pro quo that can happen, where they can favor a particular political party which has given them funds. Through funds they can win elections, and yeah, so this is a very serious threat to democracy that we are facing today. Yeah, I hope I've answered. If there's anything particular you'd like to ask, I can answer that. Sure. Thank you so much, Neha. That was very comprehensive, very informative. नेहा ने अपने 15 मिनट में बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी हैं. नेहा ने मेनली हिंदी अंग्रेजी में बोला, तो मैं हिंदी में एक क्विक अनुवाद जरूर कर देती हूँ, क्योंकि जो बातें कोर्ट में चल रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो हमें समझना जरूरी है. नेहा ने बताया कि फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया देश में, और फाइनेंस एक्ट का सबसे जरूरी बात यह है कि उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से बहस पार्लियामेंट में होने की जरूरत नहीं होती है. लोकसभा में बात हो जाए, लोकसभा में हम जानते हैं कि पार्टी इन पावर जो है उनका मेजॉरिटी है.
और ये चारों अमेंडमेंट्स जिनकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हुई, इनकम टैक्स एक्ट में हुई और जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुई, ये चारों अमेंडमेंट्स लाई गई 2017 में। और इस पर बिना किसी बहस के पार्लियामेंट में इतना जरूरी मुद्दा था जिसकी इतनी रैमिफिकेशंस हैं हमारे लोकतंत्र पे, लेकिन जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, इतनी पूरी तरह से हमारी पार्लियामेंट को के अंदर जो डिबेट होती है, जो डिस्कशन होनी होती है अहम मुद्दों पर, उसे कुचला गया है। तो उसी सिलसिले में, उसी पूरे तरीके से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी लाया गया और ये चारों जो कानून थे उन्हें संशोधित कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2017 के। फाइनली स्कीम जब आई वो जनवरी 2018 में आई, तो पहले कानूनों को संशोधित किया गया जिससे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए जमीन तैयार करी गई और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में आई। और ये जो केस की बात हम कर रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया, वो केस 2017 में ही दायर हो गया। तो ये भी वेट नहीं हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आए, उससे पहले ही जिस तरीके के संशोधन लाए गए कानूनों में स्पष्ट हो गया था कि ये तो बिल्कुल गलत है हमारे लोकतंत्र के लिए, और इसलिए इस केस को डाल दिया गया। बहरहाल कुछ हुआ नहीं इस मामले में। 2018 जनवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आ गई और 15-16 बार मैटर लिस्ट हुआ कोर्ट में। हम जानते हैं कि लिस्ट हो जाते हैं मैटर, तो 15 या 16 बार नेहा ने बताया कि मैटर लिस्ट हुआ है अभी तक, लेकिन केवल 2 बार हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है मैटर में। पहली बार सुनवाई हुई अप्रैल की 2019 में, तो मतलब कि 1.5 साल डालने के बाद पहली सुनवाई हुई और उस सुनवाई में इंटरिम ऑर्डर आया। चीफ जस्टिस उस समय पे गोगोई जी थे, उन्होंने कहा, बड़ी बातें बहुत बड़ी हुई उसके अंदर, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही वजनदार मामला है, वेरी वेरी वेटी मैटर, और उन्होंने कहा कि इसका तो हमारे लोकतंत्र पे एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है, बहुत खराब प्रभाव पड़ सकता है, और इसके अंदर तो हमें बहुत ध्यान से और लंबी सुनवाई करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी अभी टाइम नहीं है। उनका मतलब ये था कहने का कि 2019 के चुनाव भी आ रहे थे, अभी अप्रैल 2019 की बात है, तो उन्होंने कहा कि समय नहीं है अभी, तो हम आराम से इसको सुनेंगे मामले को, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। अब उसमें उन्होंने फिर ये कहा कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये आदेश देते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड लिफाफे में लिख के बताएं कि उनके पास कितने इलेक्टोरल बॉन्ड आए। अब ये जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है, जिसको हम कहते हैं कि मतलब बंद लिफाफे की जो पूरी की पूरी हमारे देश में प्रथा चल गई है, और चीफ जस्टिस गोगोई ने इसे खूब चलाया भी। इस मामले में भी उन्होंने कहा कि बंद लिफाफे में पॉलिटिकल पार्टीज बता दें उन्हें कितनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस मिली और इलेक्शन कमीशन को बता दें। बड़ा सवाल ये है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस पार्टी को कहां से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन को देने की बात की गई, उस पर भी अमल सही से नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन और के पास जो भी आया नहीं आया, तो फिर एक और पिटिशन स्टे के लिए लगाई गई कि देखिए जब तक कोर्ट इसको बंद नहीं करता, इस सुनवाई को कर नहीं लेता, तब तक कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल तो ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जहां हम सब ने समझा है कि 7-8 परिवार हैं, 7-8 कंपनियां हैं जिन्होंने पूरे देश की संपत्ति 50% को अपने कब्जे में कर रखा है। तो ऐसे में वो लोग जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट है, वो बड़ी डोनेशन देकर अपना काम कराएंगे पार्टियों से, तो ये नहीं होना चाहिए है। और साथ ही में
एक बड़ा मुद्दा ये था कि इलेक्शन कमीशन ने और आरबीआई ने लगातार सरकार को ये कहा था कि आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मत लाइए, इस स्कीम से तो काला धन उत्पन्न होगा, पूरी तरह से पारदर्शिता खत्म हो जाएगी पार्टियों की, और ये भी कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी, काले धन को सफेद बनाने की काम चलेगा, इससे धंधा चलेगा और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। इसके बावजूद सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई थी सरकार, और सरकार ने ना पार्लियामेंट में ये बात रखी और ना ही लोगों को ये बात रिवील करी। ये आरटीआई में बहुत सारी जब एप्लीकेशंस लगाई गई उसके थ्रू ये सामने आए थे तथ्य। अब 2 साल पास हो गए लेकिन एप्लीकेशन उसके बाद लिस्ट नहीं हुई, और ये बहुत ही चिंता की बात है। और नेहा ने भी यही कहा कि लिस्ट मतलब इतना बोल दिया चीफ जस्टिस ने कि लोकतंत्र पे खतरा है, इतनी बड़ी बात बोल दी, उसके बाद भी कोई लिस्टिंग ही नहीं हुई। 2 साल पास हो गए, एक और एप्लीकेशन 2021 में लगाई गई और इतने में बॉन्ड्स खरीदे जा रहे थे, बॉन्ड्स की खरीदा खरीदी चली जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में सन्नाटा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोर्ट ने फिर फाइनली जब दूसरी बार हियरिंग हुई तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, कोर्ट का रवैया कुछ ऐसा था कि कोर्ट ने कहा कि देखिए ये कुछ हमें समझ में आ रहा है कि पार्टियों को बताना तो होता है कि उनके पास टोटल कितना पैसा आया, कहाँ कितना पैसा आया, और लोगों को भी बताना पड़ता है इनकम टैक्स में कि हमने कितना कितना पैसा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का दिया, लेकिन किसको दिया तो आप लोग खुद ही मैच कर लीजिए। कहीं पर 10 लाख है, किसी ने दिया किसी ने लिया, तो आप खुद समझ जाइए कि किसने दिया होगा, किसको दिया होगा। तो नेहा ये कह रही है कि ये तो बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है। मतलब क्या अब हर नागरिक को जब जाके वो वोट करेंगे, उनका काम पहले ये होगा कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कहाँ 1 करोड़ आया, कहाँ से 10 करोड़ आया, कहाँ से 10 लाख आया, वो देखेंगे, और फिर इनकम टैक्स में कहाँ से मालूम पड़ेगा हमें कि किसने कितना पैसा दिया, किस कंपनी ने दिया, किस इंडिविजुअल ने दिया। तो कोर्ट ने जो इस पर रवैया अपनाया वो बहुत ही चिंताजनक था। दूसरी चीज कोर्ट ने कहा कि देखिए, आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी दिक्कतें उठाई थी वो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि प्रिंसिपल तो वो अग्री कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस टाइप का अगर हमारे देश में लोकतंत्र में जो एक सबसे जरूरी खंबा है हमारे इलेक्शन, जो हमारी जुडिशरी का खंबा है, वो इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब तब से ये जब से हियरिंग हुई 2021 में, तब से मामला ठंडा पड़ा है, कोई हियरिंग नहीं हो रही। यूपी और बाकी सब जगह के चुनाव हो रहे हैं, खूब बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों के पैसे इधर उधर जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली 3 अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशंस लगाई गई। तो जो वकील हैं वो अपना काम करते जा रहे हैं। प्रशांत भूषण, नेहा ने बताया कि उन्होंने इसके ऊपर लगातार बात रखी है कि आप इसको उठाइए, इसके ऊपर हियरिंग करिए। और जस्टिस रमन्ना ने हाल ही में जब प्रशांत भूषण ने ये बात उठाई तो जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हाँ, हम ये सुनेंगे, अगर कोविड नहीं होता तो हम इसकी सुनवाई कर लेते, लेकिन अभी हम करेंगे, लेकिन डेट नहीं बताई। और अभी लिस्ट हुआ है जुलाई के लिए, पर जैसे चल रहा है अभी तक लिस्ट तो हो जाता है, मामला लगेगा कब ये कुछ मालूम नहीं है, डिले चलता जा रहा है। तो हाल नेहा ने हमें पूरा दिखा दिया है, पूरा स्पष्ट बता दिया कब शुरू हुआ केस, मामला कहां पर है, किधर फंसा है, क्या हो रहा है कोर्ट में। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्राउंड्स क्या हैं। 3 ग्राउंड्स उन्होंने बताया स्पेशली। एक तो कि हमारे जानने के अधिकार का उल्लंघन है, हमें जानने का अधिकार है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहाँ से पैसा ले रही हैं, जिससे कि हम जान सके कि वो किसके लिए काम करेंगी और अपना वोट हम ठीक जगह पर दे सके। दूसरा,
जिस तरीके से हपड़ा तबड़ी में बिना किसी डिस्कशन के कानून लाए, बिना फाइनेंस एक्ट के थ्रू ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई है, ये तो लोकतंत्र पे खुद ही मजाक है। और फाइनली उन्होंने ये बहुत जरूरी बात बताई कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी ही दे। फॉरेन कंपनीज भी उनको केवल एक सब्सिडरी भारत में खोलनी है और पैसे डाल सकती हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी बैठे लोग हमारे देश में हस्तक्षेप पॉलिटिकली कर सकते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है और इसको भी ग्राउंड्स बनाया गया है। नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छे से और कॉम्प्रिहेंसिवली हमें ये सारी चीजें बताई। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सौरभ जी। संदीप सौरभ मेंबर हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के। संदीप जी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पालीगंज कॉन्स्टिट्युएंसी को, विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आज की चर्चा में। हमने संदीप जी को इसलिए रिक्वेस्ट किया कि वो आके अपनी बात रखें क्योंकि हम लोग सब नागरिक के रूप में तो इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसकी गंभीरता। लेकिन आप ये सोचिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो ऑपोजिशन की पार्टीज भी खड़ी होंगी। लोकतंत्र का तो मतलब ही तब बनता है जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज सही से चुनाव लड़ सके एक लेवल प्लेइंग फील्ड से। तो क्या चुनावी बॉन्ड का क्या असर पड़ता है चुनाव में? उस समय पर आप जब चुनाव लड़ते हैं, आपकी पार्टी और आपकी जैसी पार्टियां, मैं नहीं कह रही हूं कि आप एक ही पार्टी की बात करें, आप जनरल उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो वी वांटेड टू हियर फ्रॉम संदीप जी what the experience of political parties, especially those parties which are not the parties in power at the center or in that particular state, wanted him to share that experience with us. So Sandeep ji, आप अपनी बात रखें अगले 15 मिनट। जी, अंजलि जी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरे NAPM के टीम को मैं बधाई देता हूं। इतने गंभीर सवाल पे जिस पे बात तो कम होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में, चुनाव में और चुनाव के बाद जो डे टू डे लाइफ की पॉलिटिक्स है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का काफी असर है। और इस तरह के मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इस सब के लिए आपको बधाई। एक तो बात, जिस तरीके से एग्जिस्टिंग लॉज में जो सुधार किए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लाकर के, उस पर डिटेल से बात हुई। लेकिन एक पहलू उसका और भी है जहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया उस समय इस इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बॉन्ड की छपाई होगी, उसका जो रख रखाव होगा, लेन देन होगा, गोपनीयता जो बढ़ती जाएगी, यानी प्रबंधन और विनिमय का परिचालन का जो पूरा खर्च है, वो पूरा खर्च न तो डोनर दे रहा है, न तो जो पॉलिटिकल पार्टी ने वो फंड लिया वो दे रहा है, बल्कि इस पूरे खर्च का जो बोझ है वो जनता के टैक्स से जो पैसे जमा हुए हैं उसके ऊपर है और अल्टीमेटली सरकार को वो पैसा देना है। और ये हर साल इस तरह के आंकड़े हैं कि इस साल के इलेक्टोरल बॉन्ड में SBI ने कितना बिल भेजा सरकार के पास, सरकार ने कितना पे किया छपाई के लिए अलग से, और बाकी जो लेन देन है और जो उसका मेंटेनेंस है उसके लिए। तो एक तो जनता के पैसे की जबरदस्त बर्बादी इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसका मुनाफा पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी, खास करके एक पॉलिटिकल पार्टी ही हो रही है, वो जनता को वहन करना पड़ रहा है। एक बात तो ये भी हम लोग को देखना चाहिए। दूसरी बात है कि पहले के भी वक्ताओं ने कहा कि जो 7.5% का एक लिमिट, एक कैप जो लगा हुआ था पहले, उस कैप को खत्म करके ये जो नई व्यवस्था बनाई गई जिसमें
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मैंने मैंने आप कितना भी पैसा चुनाव में लगा सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है, और उसके जो आंकड़े हैं वो किसी को पता नहीं कितना पैसा है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में खास करके ये दिख रहा है हम लोग को कि चुनावी प्रक्रियाओं में और डे टू डे लाइफ का पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो पार्टी का अलग अलग एक्टिविटी होता है, इन एक्टिविटीज में इतना ज्यादा पैसे का बोलबाला हो गया है कि अब वो आम लोगों की पहुंच से, आम साधारण पार्टियों की पहुंच से काफी ऊपर हो चुका है। अभी जस्ट मैं बिहार में हम लोग चुनाव देख रहे थे, वहां पे एमएलसी का चुनाव था। एमएलसी का चुनाव इससे पहले भी हुआ, लेकिन इस बार जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें साफ साफ दिखा कि एक कैंडिडेट अगर वो 15 करोड़ रुपए अपनी जेब में लेकर के कैंडिडेचर नहीं भरता है, तब वो चुनाव जीतना तो दूर की बात, वो फाइट में भी नहीं है। इसी तरीके से इसका पेनेट्रेशन काफी नीचे तक पंचायत चुनाव तक हुआ, और इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से या इस पूरे चीज पर चुनाव में पार्टियों को जो फंडिंग आता है उस पर पर्दा डाल देने की वजह से कितना पैसा आ रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे पिछले बार के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो बिहार के अंदर सुना था कि उस टाइम पे जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें जिन लोगों को पार्टी की टिकट मिल गई, उनको टिकट मिलने के 1 सप्ताह के भीतर 3 करोड़ रुपए भी मिल रहे थे। आपको टिकट मिल गया, अब आप किसी भी तरीके से इस चुनाव को आपको जीतना है, ये आपको एडवांस में है और बाद में आपको पैसे और मिलेंगे। तो एक पार्टी को अचानक से इतना पैसा मिलेगा कि चुनाव के समय वो सारे कैंडिडेट्स के बीच में पैसे बांटेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करके वोट खरीदे जाएंगे, वोट मैनेज किए जाएंगे, और इसके अलावा चुनाव के बियॉन्ड भी पूरे साल तक उनका जो एक्टिविटी होगा उसमें पैसे का एक पूरा माहौल बना करके और कुछ लोगों को आकर्षित करना अपनी तरफ से कि यहाँ पे जाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा। ये जो एक माहौल बन रहा है, इसमें डेमोक्रेसी तो सच में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हमने ये देखा कि टिकट जब बंट रहा है, अलग अलग पार्टियों का टिकट जब लोग सर्कुलेट करते हैं, तो कैंडिडेट को टिकट मिलने के साथ पार्टियों की तरफ से पैसे के अलावा एक और व्यक्ति भी दिया गया। पिछले 2019 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऊपर सेंट्रली उस पार्टी की तरफ से भेजे गए हैं, जिसके पास पैसे का अथाह सोर्स है। तो इतना पैसा अगर वो चुनाव के समय खर्च करेंगे, जहां पे आप चुनाव को मैनेज कर ले रहे हैं, जहां पे आप संस्थानों को मैनेज कर ले रहे हैं, जहां पे आप वोटर्स को रात में जाकर के शराब बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, धोती बांटना, ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे में डेमोक्रेसी तो सच में खतरे में है। तो ये एक काफी गंभीर मसला है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि साल के बाकी टाइम पे भी कोई खास पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने बेनिफिट के लिए इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रोसेस को आगे लाया, जो गैर संवैधानिक भी है और जो नागरिकों को का जो स्थान है उसको खत्म करके उसको बस एक क्राउड में तब्दील कर दे रहा है, जहां पे आपको ये जानने का हक ही नहीं है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं उसको किसने कितना पैसा दिया। तो ये तो काफी क्रूशियल सवाल है, बाकी डिटेल तो बातें आई हैं। मुझे बस यही लग रहा है कि इसका असर, एक तो चूंकि जब ये कानून आया और कानून को लेकर के जब बहस चल रहा था, उस समय में हम लोग जेएनयू के ही स्टूडेंट थे, और उस समय ये काफी चल रहा था कि जनता के पैसे का इस्तेमाल जेएनयू के छात्र जो है वो कर रहे हैं, टैक्स का पैसा का मिसयूज करता है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट दिलवाने के लिए इस बॉन्ड को लाया गया, उसका तो पूरा वजन जो है वो सिर्फ टैक्स पेयर्स के ऊपर है। हम टैक्स दे रहे हैं, उस पैसे से इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्चे छप रहे हैं, उसी पैसे से उसका मेंटेनेंस हो रहा है, उसी पैसे से सर्कुलेशन हो रहा है। और इन सब बातों को लेकर के जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के गवर्नमेंट ने दिखावा के लिए ही सही, लेकिन जब एक प्रपोजल आरबीआई को भेजा तो आरबीआई ने इसको रिजेक्ट किया था। आरबीआई ने इसके कई सवाल डाल दिए थे, गवर्नमेंट ने नहीं सुना, आरबीआई को दोबारा से फरमान भेजा। उस फरमान को सुनने के बाद, ये जानने के बाद कि गवर्नमेंट इसको आखिरी निर्णय बोल के हमारे पास भेजी है, आरबीआई ने सिंपली इनकार कर दिया। उसके बाद ये मामला एसबीआई के पास गया, और आज एसबीआई यानी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ही जान रही है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग किस कॉर्पोरेट ने दिया या किस व्यक्ति ने दिया, किस कंपनी ने दिया। और पहले के वक्ताओं ने कहा कि इसमें कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस देश का पैसा आ रहा है। क्योंकि 19 के पहले तो हम लोग देख रहे थे कि देश के अंदर काला धन वापस लाएंगे, इसका एक बड़ा माहौल था। लेकिन काला धन वापस आकर के जनता को 15-15 लाख अकाउंट में न जा करके वो सीधे काला धन पॉलिटिकल पार्टी के जेब में जा रहा है, जहां से वो पूरे लोकतंत्र को मजाक के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं। और ट्रेजेडी है कि इतने गंभीर मसले को लेकर के भी हमारी जुडिशियरी जो है वो काफी वो संवेदनशील उतना नहीं है जितना होना चाहिए था इस पर। तो और सबसे बड़ी बात की चूंकि ग्राउंड पे जो मीडिया का असर है, जिस मीडिया की पहुंच है, खास करके मैं उत्तर भारत के जो हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, इनके बीच में जिस मीडिया का पहुंच है, उस मीडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड और इसकी जो खामियां हैं, इसके जो खतरे हैं, उसकी तरफ इशारा भर भी नहीं का आज तक हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी वक्ताओं को और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और चुनावी और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मेरे ख्याल से एक बार बैठ करके इसको ढंग से सोचना चाहिए कि ये एक वो बैटल है, एक वो इम्पोर्टेंट बैटल है जिसको बिना चैलेंज किए हुए आप आज का जो सत्ताधारी पार्टी है, जो बीजेपी है, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का 80% से लेकर के 95% तक पैसे मिले हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं बिना इसको चैलेंज किए हुए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे हम लोग को एक बड़े स्ट्रगल की तैयारी में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। और आपने एक पर्सपेक्टिव रखा है हमारे सामने। पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से कि उन्हें आज क्या फेस करना पड़ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद। इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे पहलू हैं जिनको आपने उठाया भी है। मैं बहुत संक्षिप्त में अंग्रेजी में अनुवाद कर देती हूँ सभी साथियों के लिए जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। Sandeep ji has very comprehensively talked to us about the experience of those fighting elections on the ground in terms of what electoral bonds has meant. He says that this cap of 7.5% that was lifted, the Companies Act was amended. Like Neha also mentioned, the Companies Act was amended. Earlier, under the Companies Act, only 7.5% of the last 3 years average profit that was made by a company could be donated to a political party. Now, the reason for that was to avoid any kind of shell companies also that were being set up, which would just be fly-by-night operators that would open up and would just give 100% of their profits and just, or whatever they had, and they would move to a political party and shut shop. So that had to be avoided to protect democracy. That cap was removed. And he is saying that the kind of influence of money power that we are seeing in elections today has absolutely gone through the roof. So his experience is that today there is no idea of how much money is being pumped into elections, especially by the party in power. So he's saying that in Bihar, even for an MLC election, which is there, the kind of money that candidates are coming in with. And let's remember over here that political parties do not have a cap on the amount of money they can spend in elections in a constituency. Only a candidate has a cap. So political parties, as long as they keep getting unlimited money, can keep pumping in whatever money that they can. So what Sandeep is telling us essentially is that with this cap gone, with electoral bonds coming in, the influence of money power has really multiplied. And it is harming democracy in the most fundamental ways. So one can see how parties are blatantly, those who have money, of course, are blatantly going out
distributing liquor, money, other things to woo voters to vote for them. The kind of thing that we wanted to stop has in fact gone much further. The problem, the malice has spread much, much further. And he again talked about the highly anti-democratic manner in which this has been done without bringing in political parties and discussions in parliament. In fact, I want to bring in here that one RTI application that we filed, in response to that, we got a paper trail which showed that at the Prime Minister's office level, the proposal to hold meetings and consultations with all political parties was shot down. So there was supposed to be discussions with all and consultations with all political parties before the electoral bonds system was brought in, but it was at the Prime Minister's office level, in a meeting that was chaired by the Prime Minister, that the proposal was shot down. So there it has been, the electoral bonds have been brought in a completely undemocratic manner. And very interesting things that Sandeep has talked about, that we've seen how students have been targeted in this regime, how students in the Jawaharlal Nehru University, JNU, they are constantly taunted. You're using up public money, you're a drain on public funds. And, yet on the other hand, we see that the cost of administering the entire electoral bond scheme is being paid entirely by the exchequer. It's not being paid by the donors or the donees, but it is in fact being paid by the public exchequer. So the question he's raised is that how selectively the political party in power today is concerned about public exchequer's money being used. But another thing, very important thing, which he has highlighted is that this issue, which is so important for the health of our democracy, there is no mention of it in the media, no mention of the problems that it is creating. There is one election after another. मतलब हम कहते हैं dance of democracy. सारे मीडिया के चैनल जो डिबेट्स होती हैं, जिस तरीके से वो कवर करते हैं इलेक्शंस को, हम सब देखते हैं. Despite so much coverage in the media of elections, of different issues, this is one issue which is just not being taken up by the media, despite it being so important for our democracy. And he has said something very significant, that we should not leave this fight only for the courts. We have to mobilize on the ground. We have to come together, rise together, make this a real issue on the ground if we want to truly protect our democracy, and without which we are really in for dark times. We cannot hope to move away from crony capitalism and the kind of regime that we are seeing unfold in the country. So thank you very much, Sandeep ji, for discussing all these issues with us and shedding light on them. We are in, at a time where very recently there was an expose that was done, in which what was found was that a company, IFB Agro in West Bengal, basically made a contribution of 40 crore rupees through subscription to electoral bonds in 2022-23, but its total profits were 47 crore rupees. Now, मतलब एक कंपनी है IFB एग्रो वेस्ट बंगाल में, जिसने 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड सब्सक्राइब किए हैं, जबकि उनकी टोटल जो प्रॉफिट है वो 47 करोड़ रुपीस का है. तो वो पूरा मामला जो है वो एक्सटॉर्शन का समझ में आ रहा है. It was basically, there were excise related issues that were being faced by the company, and the political contribution was in the context of these issues. मतलब उनका excise related मामले चल रहे थे, और ये जो donation दी गई वो उन मामलों के
को रद्द कर किसी तरह से टैकल करने के लिए दी गई। तो ये जो मामला है ये दिखाता है कि कैसे चुनावी बॉन्ड जो है उनको एक्सटॉर्शन के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो बड़ी चिंता की बात है इसके अंदर जो मामला ये भी सामने आया है। I am going to now move to Vipul Mudgal. Vipul, thank you so much for joining us today. Vipul is really not well. He's got a very bad back problem, but despite that, he has joined us today. Vipul, oh, it's lovely to see you, Vipul. I was not expecting to see you, but just hear your voice. But it is so nice to see you. And Vipul, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत शुक्रिया। विपुल की बहुत पेन के बावजूद आप इस मुद्दे पे जुड़े हैं, और मैं जानती हूँ कि क्यों, क्योंकि विपुल, दिस इशू इज सो क्लोज टू विपुल्स हार्ट। कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं। कॉमन कॉज एक ऐसी संस्था है जो लगातार पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों को कोर्ट लेके जाती है। विपुल पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं कॉमन कॉज के, तो बहुत सारी हैट्स पहनते हैं विपुल। और इस मामले में विपुल ने बहुत समझा है, लिखा है, बोला है। कोर्ट में भी कॉमन कॉज इस मामले को लेके गए हैं। तो विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत। आई एम रिक्वेस्टिंग विपुल टू स्पीक इन 15 minutes to us. Vipul is, of course, we've known him as a journalist, we know him as a fearless activist, and also as the director of Common Cause, which has taken this matter to court. Vipul, the floor is yours now for the next 15 minutes. Please go ahead. थैंक यू वेरी मच अंजलि। आप अभी तक जो लोग बोले हैं उन्होंने इसके ऊपर काफी इसकी सारी चीजों के ऊपर प्रकाश डाल दिया है। मुझे लगता है कि ज्यादातर बातें जो कवर करने वाली हैं वो कवर हो चुकी हैं। हमें ये पता है कि ये क्यों लाए गए, किसे फायदा पहुंचा रहे हैं, ये कैसे इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है। जैसे फाइनली सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि मुझे पहले ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, और एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के रूप में भी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 75 साल में, जैसे हम कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम करने जा रहे हैं, पिछले 75 साल में इससे ज्यादा रिग्रेसिव और इससे ज्यादा खतरनाक कोई दूसरी नियम कानून हिंदुस्तान में नहीं बनाया गया अब तक। हालांकि ऐसा नहीं है, we are known for all kinds of regressive, anti-democratic, systems and processes. We know that how constitution has been undermined, how appointments are done to important positions, including the Election Commission of India. All that has been going on for a long time, and all that is going on even today. But in spite of all that, the most egregious of all violations in letter and spirit today is the electoral bonds. और उसके लिए मैं आपको एक बात, मैं भी कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं में बोलूं। तो पहली बात तो ये है कि हम जैसे देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन जो है वो इलेक्शन है, गंगोत्री है भ्रष्टाचार की। हम देख रहे हैं कि अभी जो नए इलेक्शन की जो नई प्लेबुक है, जो इलेक्शन की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, नाटक की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो इस तरह से है कि ध्रुवीकरण है, दंगे फसाद हैं, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, you have the casteism at its height, communalism at its height, polarization, riots, and all that is going on. But above all that is the money power. And today, I believe that the most expensive election in the world is the Indian election. Actually, the expenditure in the last election was in the range of about $9 billion. And all the elections in India in one particular cycle is more than $32 billion, which is actually even more than the expenditure in many developed countries where the currencies are much more, stronger, more expensive, and generally life is more expensive there in terms of their currencies.
तो हम ये देख रहे हैं कि इतना महंगा इलेक्शन हो रहा है, तो आखिर ये हो क्या रहा है? हम अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो जैसे 3 बातों को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। पहला ये कि कॉरपोरेट्स इलेक्शंस में क्यों हो। अगर मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं, मैं अंबानी हूं या मैं अडानी हूं या मैं टाटा हूं या मैं बिरला हूं, तो मैं पैसे कमाता हूं, मेरी कंपनियां पैसे कमाती हैं, मैं जितना चाहूं पॉलिटिकल पार्टी को दूं अपने पैसे से, अपनी कमाई में से, कंपनियां क्यों दें? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कंपनियां अगर पैसा देंगी पॉलिटिकल पार्टी को तो कहीं ना कहीं सौदेबाजी होगी। इंडिविजुअल अगर देगा तो उसके विश्वास का मामला है, सौदेबाजी वो भी करेगा और कर सकता है, लेकिन उसके विश्वास का मामला भी हो सकता है। कंपनियों को तरफदारी लेने की, मैं इस पार्टी में हूं या उस पार्टी में हूं, उसकी तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सो द सीलिंग दैट वी हैड इन इंडिया of 7.5% of the average earning of the last 3 years had a purpose. The purpose was that one, the loss-making companies will not be able to invest in elections, number one, which means that they will not have a quid pro quo to say that you save us and bring us into green from red and we will give you money. So the profit-making companies can only give, and those who have whatever your profit is, you cannot give more than 7.5%. इसका मतलब ये है कि कंपनियां जो उनकी हिस्सेदारी इलेक्शन में है वो एक छोटा उसका रूप होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि कंपनियां ही छा जाएं। अगर कंपनियां मान लीजिए 100 में से 99 कंपनियां देंगी तो इंडिविजुअल्स कितना भी कर लें उनका 1% रह जाएगा। यानी कि जो इट बिकम्स अ प्ले ग्राउंड ऑफ बिग मनी, बिग कैपिटल, बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट्स, तो उसको रोकने के लिए 7.5% था, वो चला गया। अब आप दूसरी तरह से देखिए इसको। एक चीज आई थी पनामा पेपर्स, हम सभी ने देखा था। ICIJ करके एक संगठन है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो पैसा है वो एक खास तरह से बाहर जा रहा है। पनामा पेपर्स में पता लगा कि करीब 7,85,000 एंटिटीज थी 200 देशों में या 200 टेरिटरीज में, जो कि जो वहां पे कुछ खास तरह से पैसा घूम रहा है। उसका एक तरीका है पैसे के घूमने का। जो भारतीय कंपनियां थी उसमें से मेरे ख्याल करीब 500 ऑफशोर कंपनीज थी, उनमें से बहुत सारे फाउंडेशंस और ट्रस्ट्स भी थे। तो अब ये पैसा भारत से बाहर जाता है और ये पैसा भारत के अंदर आता है, तो इसे राउंड ट्रिपिंग भी कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंपनियां जिनके पास, आपको पता है कि बहुत बहुत सारे टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, शेल कंपनीज होती हैं, स्लश फंड्स होते हैं, जो तरह तरह के जो माइनिंग में सौदेबाजी करके पैसे निकलते हैं, भ्रष्टाचार का पैसा निकलता है, बैंकों का पैसा लेके जो भाग जाते हैं वो भी अपनी स्लश फंड्स के लिए शेल कंपनीज बनाते हैं। उसमें तरह तरह के फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, जिसमें आर्म्स के, वेपन्स के डीलर्स होते हैं, उसमें जो वो लोग होते हैं जो ग्लोबल टेंडर भर रहे होते हैं। तो उसमें वी सी दैट दिस बिकम्स नॉट जस्ट अ प्लेग्राउंड फॉर कॉर्पोरेट्स, but it becomes a playground for dirty money, for slush funds, for all kinds of shady entities, not just in India, but all over the world. There is a way in which the money goes out, and there is a way in which the money comes back into India. And one of the most dangerous things, which has been pointed out today, first by Neha and later by Anjali yourself, that, the 1 year before the 1917 amendments kicked in, there was another amendment done in 2016, which was in the Foreign Contribution Regulation Act of India, and that Act of 2010 was amended. Now, why was that amended? That was amended in retrospect. The fact was that the both big political parties in the country, Congress and BJP, had received funds from foreign entities in complete, egregious, blatant violations of all constitutional norms. सारे देश, सारी दुनिया में सारे देश ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस
फ्री और फेयर रहें, उसमें सबसे पहली मर्यादा की बात भी है और सबसे पहली नियम कानून की बात भी है। कम से कम बाहर के देश जो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, जिनके तरह तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, ड्रग्स में इंटरेस्ट हो सकता है, वेपन्स में इंटरेस्ट हो सकता है, डिफेंस में इंटरेस्ट हो सकता है, वो लोग तो कम से कम यहाँ पे खेल ना करें। तो ये जो तरीका हुआ, आपने जो राउंड ट्रिपिंग करना एक तरफ से अलाउ किया, उसके बाद शेल कंपनीज अपने सब्सिडियरीज के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकती है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल सिक्योरिटी को अपना धर्म समझते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वोट मांगते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे लोगों को जमा करते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेंगे। अब ये मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं। इसमें देखिए, मेरा संबंध दोनों संगठनों से है, कॉमन कॉज से और एडीआर से भी एक तरह से। तो हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसा दे रही हैं और जो पैसा ले रही हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक और डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है, वो है डेमोक्रेसी, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। अभी छोटे छोटे बच्चे जो 15-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो 1,000 रुपए का SIP भर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि एक नया हमारे देश में एक वो तरीका चल रहा है, where a lot of retail investors are investing their hard-earned money into the stock market, and they want to get information about the stock market, about the operations of the companies. So as a shareholder democracy, they must understand that how much money their company is giving to which political party and why. There should be some explanation there. So there is a way in the electoral bonds in which the shareholders of the companies have been kept in the dark. There is no way, they just have to declare कि इतना पैसा हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए दिया। ये नहीं बताना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए पैसा किस पार्टी को कब दिया और किस इलेक्शन के पहले दिया। तो वो जो it's a very crucial element of democracy, that you are actually keeping the shareholders in the dark. So I think not only the changes in the in the other 4 acts that Anjali mentioned, in the Income Tax Act, in the RBI Act, in the Representation of People's Act, the FCRA Act was done in retrospect to save themselves, to save their skins. अगर वो रेट्रोस्पेक्ट में नहीं होता तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े संकट में फंस सकती थी, लेकिन उन्होंने ये करने की जरूरत नहीं समझी। अब मैं आपको दूसरी बात एक बताता हूं कि जो रूलिंग पार्टी है उसको क्या जरूरत है, जब आपको ये पता है, when you know very well that 80% to 97% of all funding is going to one political party, then why that political party is interested in electoral bonds? They can get that money anyway. You know, they say if you did not have, what was said at the time of the introduction is that you will get digital payments. So this will be per se transparent. डिजिटल को ट्रांसपेरेंट मान लिया जाता है कि भाई इसमें थोड़ा सा पारदर्शिता होगी क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जब रूलिंग पार्टी पैसा ले रही है, तो जब दूसरी पार्टी, जैसे पूनम ने बताया था, जब दूसरी पार्टियों को कुछ पैसा मिल रहा है, जिनको 3% में सारी पार्टियों को पैसा मिला किसी टाइम में, बाद में 20% में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिला, बाकी 80% एक पार्टी के पास गया, लेकिन उस 20% के ऊपर भी उनकी नजर है, या उस 3% या 5% जो अलग अलग समय में अलग अलग जब बॉन्ड आते हैं तो उसमें इनका अनुपात रहता है। तो जब उसमें इनका इतना इंटरेस्ट क्यों है? उसमें इनका इंटरेस्ट इसलिए है कि वो, जैसा पूनम ने कहा था, कि वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। वो 2 तरह से पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, आप सुनाए कि उन लोगों को पैसा दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, क्या हम बुरे हैं? तो वो फौरन क्या, नहीं सर आप भी ले लीजिए कुछ। तो एक तरीका तो ये है, आपने बहुत अच्छी तरह से कह दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके ऊपर छापे, ये तो हम देख ही रहे हैं लगातार, धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं,
उनके घर में छापे पड़ रहे हैं, उनके ससुर के घर में छापे पड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के घर में छापे पड़ रहे हैं, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, भाइयों के, बहनों के, बच्चों के घर में छापे पड़ रहे हैं, तो जिन कंपनियों में काम करते हैं वहां छापे पड़ रहे हैं। तो आपने उनको इतना धमका दिया, इतना डरा दिया। दिस इज कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट, दैट ऑल द फंडर्स for whatever reason, if they are willing to give money to another political party, will get the chilling effect that they will not give this money in the future because it is too risky for them to run their empire, by giving, or they will hedge their bets and they will give the money to both the parties. जैसे चलो यार तुम भी ले लो थोड़े से, बाद में ये मत कहना कि तुमने इसको क्यों दिया। तो ये कई लोगों ने कहा, हमने आम आदमी पार्टी से ये पूछा था डायरेक्टली, हमने उनसे कहा था कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने इतनी बार कहा था कि हम डिक्लेयर करेंगे, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, आप बता के चलिए कि आपको कितना पैसा मिला। तो उनका जवाब ये था कि भाई हमको जो पैसा देते हैं उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि सर जो लोग छापे डाल रहे हैं उन्हें तो वैसे ही पता है, जैसे आपको पूनम जी ने बताया था कि वो तो उसमें यूनिक नंबर पहले से बना हुआ है, तो उनको तो पता है, वो तो वैसे भी आपके यहाँ छापे डाल सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था, यू हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सेट अ न्यू प्रेसिडेंस इन डर्टी इंडियन इलेक्शंस by declaring, by making declarations of every little thing. And the other thing that I want to say is that this government is very strong and very big on digital payments. And I think it's a good effort in many ways. It has its own problems when it becomes compulsory, Aadhaar and this and that. Those have their problems, but digital is not without its advantages. Let us say कि आप ये कहते हो कि आप बैगन खरीदने जाओगे तो 2 रुपए 25 पैसे आप डिजिटल में पेमेंट करो, तो आप फिर ये 19,900 का भी लिमिट क्यों रखो, जो अंजलि ने कहा था। अगर 25 पैसे भी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूं तो डिजिटल दिलवाइए ना सर, आप तो डिजिटल के इतने बड़े सपोर्टर हैं, तो ये आपने क्यों छोड़ दिया 20,000 का। तो आप अगर 2 रुपए भी कोई दे रहा है ना तो डिजिटल दिलवाइए, एक तो देश का फायदा होगा, जैसे आप खुद कह रहे हैं, बार बार द पॉलिटिकल पार्टी इज सेइंग that look, digital is good for us, digital is good for India's future, then sir, please take digital money only. There will not only be a trail, you can also immediately automatically give a digital receipt also. That will be the end of the matter. So they are not doing this, तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। तो इसमें जो मोटे तौर पे हम लोगों का कॉमन कॉज का और एडीआर का और जो दूसरे संगठन भी हैं, जो अब तो कई संगठन हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कोर्ट को करना पड़ेगा, और कोर्ट इसीलिए इसको उठा नहीं रहा। देखिए, नेहा ने कहा कि कोर्ट लगातार डॉज कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये आए ना, ये उठे ना। तो इसका एक मुझे लगता है कि one of the reasons is that the court knows that this is an open and shut case. It will be very difficult. It will be practically impossible to go into the merits of the case and then reject it. So why go into the merit of the case at all? जाओ ही मत, उसको घुमाते फिराते रहो, लीपा पोती करते रहो, और उसके बाद आपका काम चल जाएगा। तो हमारा ये मानना है, as on behalf of my organization Common Cause, and as a public spirited individual and as a citizen of India, I believe that electoral bonds is not the last fight. We are fighting for free and fair and good elections. You know, the way criminals are taking over, you see the ADR facts and figures and you'll find that a criminal is twice as likely to be elected even when a criminal is pitted against a clean candidate. यानी कि आपके सामने क्लियर चॉइस है कि साफ सुथरा व्यक्ति भी है और क्रिमिनल भी है, लेकिन वोट हमारा क्रिमिनल को जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? उसके भी रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। ऐसा क्यों होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत मजबूत है, जो प्रधानमंत्री जी जनता के बहुत प्यारे हैं, वो भी इतने सारे क्रिमिनल को क्यों सीट देते हैं? वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उनकी कैबिनेट में भी 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अच्छे खासे क्रिमिनल केसेस होते हैं? तो ऐसा मजबूत लोग भी ऐसा करेंगे अगर, तो कमजोर लोग तो हमने सुना था कि ऐसा करते आए हैं। तो ये जो क्राइम और पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। मनी और मसल पावर की लड़ाई है, वो भी चलती रहेगी। और हम ये देखते रहे हैं
कि इलेक्शंस में जो लास्ट पॉइंट में आपको अंजलि जी इसमें जरूर लाना चाहूंगा, उसमें अब देखिए कि हम जो डिजिटल मनी की बात कर रहे हैं, ये पूरा खेल डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। नाउ the elections are being fought on the ground only to about 30 to 40%, 60 to 70% election in some cases, and in some cases 40 to 50% election is being fought on digital media platforms, on social media platforms. A lot of money is being spent on targeted advertising, on targeting individuals, on targeting voters. तो जो वो पैसा है, आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो डिजिटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ट्विटर हैं, जो फेसबुक हैं, जो टेलीग्राम हैं, जो और तरह तरह के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनसे कहता है कि आप डिस्क्लोज कीजिए कि किस एक कैंडिडेट के फेवर में कितना पैसा खर्च हुआ, इसको डिस्क्लोज कीजिए, तो वो तो बाहर की एंटिटीज हैं, उनकी तो जवाबदेही नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो देखिए, दो तरह से भारत के इलेक्शंस फॉरेन की उससे प्रभावित हो रहे हैं, फॉरेन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो सब्सिडरीज हैं फॉरेन कंपनीज की, वो खरीद सकती हैं, और दूसरा जो ग्लोबल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका स्नेह और उनका प्यार सत्ताधारी पार्टी के लिए बढ़ता जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो जिस तरह से दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे टू प्लीज द पावर्स टुडे, इट्स वेरी वेरी स्कैरी। देखिए, जो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने देखा था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका में क्या हुआ था। पैसे का भी खेल था, डिजिटल का भी खेल था, और विदेशों का भी खेल था, जिसमें अमेरिका जैसे देश के इलेक्शन को प्रभावित किया गया था। कम से कम मुझे मेरे अंदाज से ऐसा बताया गया था उस समय 87 मिलियन, करीब 8 करोड़ से ज्यादा, वहां के इलेक्शन में 8 करोड़ बहुत होते हैं, उससे ज्यादा फेसबुक के प्रोफाइल्स को हार्वेस्ट किया गया था और समझा गया था कि कौन व्यक्ति किस तरफ जा सकता है, और उसके लिए उस तरह की टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की गई थी। ये कब की गई थी? ये 2012 के आसपास की गई थी। सर, इस बात को भी करीब 8 साल हो चुके हैं। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जिस तरह से पैसा खर्च हो रहा है, जिस इतना सोफिस्टिकेशन आ चुका है इसके अंदर, तो हम अगर ये देख रहे हैं कि अभी अगर हमारे कोर्ट्स ने अभी ये द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोका, और इन्होंने खड़े होके ये नहीं कहा कि कम से कम इसके ऊपर आवाज उठाएं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कंप्लीटली। ये आपके यहाँ की ये डेमोक्रेसी को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। और हम ये मानते हैं कि कम से कम उसके बाद हम पूरी लड़ाई ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ेंगे। वी विल फाइट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अगेंस्ट डिफरेंट करप्शन एंड deepening of divisions and etc. But this is definitely the fountainhead of corruption. ये गंगोत्री है, और इसको जो गंगोत्री को बदनाम नहीं करना चाहिए, ये समझ लीजिए कि मुख्य धारा है, ऐसे कहना चाहिए। ये मुख्य धारा है जो करप्शन की, जो बह रही है, और उसमें सब हाथ धो रहे हैं। और इन लोगों को अगर हम लोगों ने नहीं रोका, अभी मिलके नहीं रोका, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसे देख रहे हैं और वो थोड़े से परेशान हैं। पर कुछ ऐसा है पार्टी के अंदर कि हिम्मत भी नहीं पड़ रही लोगों की, और फिर ये है कि भाई कैसे कह दें, क्योंकि ईश निंदा हो जाएगी। तो वो, लेकिन पार्टी के अंदर सुगबुगाहट है इसे लेके, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी अभी तो बोल रही है, लेकिन जैसे उसको बोलना चाहिए था, एक ऑपोजिशन को उसको उठाना चाहिए था, वो नहीं बेचारे उठा पा रहे। और अभी हमारे जो दूसरे भाई लोग हैं, जो राज्यों में जिनकी सरकार है, उन्हें लग रहा है इसे उठाएंगे, जरा ऑपोजिशन में आ जाने दो। जब तक हमारी सत्ता चल रही है तब तक क्यों करें, तब तक तो लेन देन हो ही सकता है, जितना ले लें उतना अच्छा है। तो मेरे हिसाब से इसको आप जोड़ के देखिए स्लश फंड्स के साथ, इसे जोड़ के देखिए आप जो इन्वेस्टिगेशन पनामा पेपर्स का हुआ है शेल कंपनीज के साथ, इसे जोड़ के देखिए राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी के साथ, और उसके बाद नजर आएगा कि डेमोक्रेसी का जो छोटा मोटा कुछ अगर फसाद बचा हुआ है तो वो भी ये समाप्त कर देगा। इसलिए हमें आपको इसके लिए आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया विपुल, दैट वाज फैंटास्टिक। आपने इतनी सारी चीजें इतने बेहद एक संक्षिप्त रूप में भी और एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारे सामने शेयर करी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव बीन इन सच ग्रेट पेन, थैंक यू। Also you were bilingual, so I don't need to go into any translations, but I think that a few points that you made are really worth highlighting towards the end. One is, why do we want companies to make donations? Individuals making donations, a citizen making a donation to a political party of their choice is still understandable, even though they might have motivations, even of quid pro quo. But certainly when companies start making donations, it raises a very big issue, because it really becomes a matter of a business transaction. क्यों कोई कंपनी किसी भी जगह पर पैसे लगाएगी जब तक वो उसके बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहती है, अपने मुनाफे के लिए कुछ नहीं चाहती है, टू बी प्रिसाइज। दूसरा मुद्दा आपने जो उठाया वो पनामा पेपर्स का, राउंड ट्रिपिंग का, किस तरीके से जो स्लश फंड्स हैं उन्हें हमें समझना चाहिए कि कैसे ये जो पैसे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आ रहे हैं, ये क्या पैसे हैं, किस तरीके के पैसे हैं, कहाँ से होते हुए आ रहे हैं ये पैसे, और कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग की सारी बातें थी। Here I can take a moment to kind of even explain what the RBI chief was saying, the governor of the RBI, about electoral bonds. The governor kept saying that this should not be done in a physical script form. The letters that came out using the RTI Act were basically from the RBI saying that if this is in a digital electronic form, it is all right. But if it is in a physical script form, it will really open itself to money laundering, because it's a very simple thing. I can go and buy electoral bonds worth 100 crore rupees, and then somebody gives me cash and I sell it to them for a certain amount of money, whatever it is, 100 or 150 crores, and then they go and conveniently deposit it in a political party. Obviously, then there is conversion of black money into white, which is also happening through this process, and there is no way to control it if it is in a physical script form. And you very cleverly brought in the entire thrust of this government on digital money, on exalting each one of us. मतलब ठेले वाले तक को कहा जाता है कि आप पैसे उसके ऊपर डिजिटली ट्रांसफर करा लीजिए, आपको रुपए से क्या मतलब है। तो हम ऐसे जमाने में जहां पर सरकारें हमें लगातार कह रही हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले जाइए, डिजिटल फॉर्म में चले जाइए, पैसे ऐसे ट्रांजैक्ट मत करिए, ऐसे में आप लाखों करोड़ों रुपए की जो चीज है उसको आप कह रहे हैं कि हम फिजिकल फॉर्म में ही करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही समझ में ना आने वाली बात है, और इससे तो मंशा साफ हो रही है कि क्या मंशा है। तीसरी बात जो आपने कही, जो मुझे लगता है जिसके बारे में इट्स द एलिफेंट इन द रूम, हम देख रहे हैं कि कैसे पूरी सिविल सोसाइटी, एनजीओ सेक्टर, जो भी आवाज उठाने वाली संस्थाएं हैं, उनके पीछे किस तरीके से सरकार पड़ी रहती है। और एक मुख्य तरीका है एफसीआरए के थ्रू, कि ऐसा बना दिया गया है कि जैसे फॉरेन से कहीं पैसे आ रहे हैं तो वो अगर फॉरेन पैसा कंपनीज में आता है या पॉलिटिकल पार्टीज में आता है, कहीं और जाता है, वो तो बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन अगर किसी एनजीओ के पास आ रहा है तो वो तो बिल्कुल सिन है, वो तो बिल्कुल पाप है। और एफसीआरए का इस्तेमाल करके किस तरीके से हाउंड किया जा रहा है एनजीओस को। और ऑन द अदर हैंड एफसीआरए का मतलब क्या है? एफसीआरए का मतलब ही ये था कि कोई बाहर बैठी हुई ताकतें हमारे देश की जो इलेक्टोरल पॉलिटिकल प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप ना कर सके, इन्फ्लुएंस, ओपिनियन बिल्डिंग करके इस तरीके से। ये तो एफसीआरए में अमेंडमेंट्स लाई गई, अमेंडमेंट्स रेट्रोस्पेक्टिवली लाई गई। आज की तारीख में कोई भी कहीं पे भी बैठी हुई फॉरेन कंपनी को केवल यहाँ पे एक इंडिया में सब्सिडरी सेटअप करनी है और उसके थ्रू कितने मर्जी पैसे, हजारों करोड़ों रुपए भेज सकते हैं इलेक्टोरल
बॉन्ड्स खरीद के वो कंपनी, तो मतलब कहीं पर बैठी हुई कोई भी एक एंटिटी जिसका वास्तव में मन हो हमारे देश में पॉलिटिकल हस्तक्षेप करने का, वो कर सकती है करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए देके। और जैसे आपने कहा कि मनी पावर इतना ट्रिमेंडस है, और मनी पावर कैसे नहीं होगा, पैसे हैं तो मीडिया है, आज तो डिजिटल मीडिया है, कैम्ब्रिज एनालिटिका है, हजारों ऐसी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें पैसे का ही खेल है। तो आप ये मुद्दे आपने हमारे सामने फिर से क्लैरिटी से रखे, और आपने कहा कि हमें नेशनल सिक्योरिटी की इतनी दुहाई दी जाती है हर चीज पे कि देश की सुरक्षा का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो जब ऐसा बेइंतहा पैसा आने वाला है अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत दूसरे देशों से, तो क्या अब नेशनल सिक्योरिटी की तब हमें तकलीफ नहीं हो रही है, तब हमें चिंता नहीं हो रही है उसकी। और फाइनली मुझे लगता है कि ये जो चिलिंग इफेक्ट की बात आपने करी, कि ये तो मतलब साफ तौर से जो भी ऑपोजिशन पार्टी को पैसे दे रहा है उसको डराने का, धमकाने का एक साफ जरिया मिल गया है कि भाई आप चाहे एजेंसियों का इस्तेमाल करके, चाहे खुले आम आप उन्हें डराएं और कहें भाई आप दूसरों को पैसे कैसे दे रहे हैं, पैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आप दे रहे हैं, हमें पता चल रहा है, तो वो पैसे इधर आने चाहिए। तो हम कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होगा हमारे देश में चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो आई फील दैट ये जो पूरा मुद्दा है, और मुझे यही लगता है जैसा विपुल आपने कहा टुवर्ड्स द एंड, कि कोई ये लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, और ये लड़ाई तो हम सभी को अपने लिए संगठित होकर लड़नी पड़ेगी। कोर्ट में लड़ाई ये नहीं आगे बढ़ रही है, हम समझ चुके हैं। उसका कारण भी आपने बताया, ये भी है कि अगर कोर्ट आज इसकी सुनवाई सही से करने के लिए बैठे तो ये तो साफ केस है, ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि ये कोर्ट इसके अंदर कहे कि बहुत अच्छा स्कीम है और डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है। तो ऐसे में कोई विकल्प नहीं, ऐसे में हम सभी को, संगठनों को, कैंपेन्स को, कलेक्टिव्स को ही मिलके इसे चुनौती देनी पड़ेगी, इसे उठाना पड़ेगा इस मुद्दे को लगातार। और पॉलिटिकल पार्टीज पे भी हम रिलाय नहीं कर सकते कि वो इस मुद्दे को उठा के सही कराएंगे, यह लोगों की ही लड़ाई होगी अगर हुई तो। और वरना सीधी बात है कि चुनाव आते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, आप कहेंगे कि हम लोकतंत्र हैं, हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वास्तव में खोखला है पूरा सिस्टम और पूरा इलेक्शन का प्रोसेस। क्योंकि अगर सारे पैसे इस तरीके से, इस टोटल अनोनिमिटी के साथ, बिना किसी पारदर्शिता के एक रूलिंग पार्टी को ही मिलते रहने हैं, तो इस सिस्टम का इलेक्शंस का दिखावा बन के रह जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइन में मैं एक बात और कह दूं कि जो कंप्लायंस है, जो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक व्यापारिक संस्थाएं हैं, तो उनको कंप्लायंस के लिए विवश करना चाहिए हमें कि वो इलेक्शन कमीशन जो चाहे उनसे सवाल पूछे और उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी दुकान बढ़ा लें, कहीं और चले जाएं। तो ये नहीं हो पा रहा क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा तो वॉशिंगटन में रहते हैं हम, और हमें नजर आ रहा है बाकी तो दंगे फसाद आपके माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्शन में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल। और मेरे ख्याल से अब हम कोमोडोर लोकेश बत्रा की बात सुनने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। और कोमोडोर बत्रा का तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है ज्यादातर लोगों को। कोमोडोर बत्रा लगातार आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके वो ऐसे जागरूक नागरिक हैं जो कि हम सबको भी जागरूक रखते हैं। तो कोमोडोर बत्रा, we all know him as someone who is a vigilant citizen, exactly the kind we need to keep a democracy functioning and going. And he leaves no effort in ensuring transparency in a host of issues, and including on the electoral bonds matter, where he's constantly querying the government, constantly querying agencies to pull out information, whatever
can be pulled out on the electoral bond scheme. I request Commodore Batra to please speak in the next 15 minutes on the matter. Commodore Batra, अपने आप को unmute कर लें. लोकेश अपना वीडियो ऑफ कर ले अगर नेटवर्क का इशू आ रहा है तो. I don't deserve what I've said and thank, but पता ने तकरीबन इसके बारे में सब कुछ बता दिया है. मैं ये कह सकता हूँ what is happening. तो इश्यूज थे, आपने बड़े अच्छे से कहा, विपुल जी ने कहा. विपुल जी अपने व्हाट्सएप देखिए, मैंने अभी आपको जो फॉरेन फंडिंग भेजे अमृता जी को और आपको, ये वाले जो इश्यूज थे 26 मई का जो पहला लेटर था इलेक्शन कमीशन 2017 का, उससे एक हफ्ता पहले एक रिकमेंडेशन भेजी गई थी पार्लियामेंट को. तो उसके अंदर ये 2 पैराग्राफ थे. वन वाज फॉर फॉरेन फंडिंग. 2, you don't want me to open my camera? I think somebody's closed it. Yeah, Lokesh, I've closed it because otherwise you were freezing on all our screens. Yeah, network is poor. So I thought there are 2 very good paragraphs. I think Amrita can read it and Vipul ji also have received from me. These were part of recommendation by Election Commission to Parliament Committee on 17th May 2017. Exactly 1 week before, they wrote another letter, 26th May letter we have been talking about. First, I'll come to data in case net goes off, because Anjali's requirement was I must talk about data. Exact number of, I'm reading out, so maybe looking down, exact number of amount of electoral bonds sold till 20th phases. We just finished our 20th phase in April. 9,856 crore 72 lakh 46,000. That is 986 crore. Out of which 9,201 crore EBs which were sold actually are of 1 crore, which makes it 93.347 crore EBs which were sold in this 20 phases are of 93%. So we know who is buying it. I mean, we don't have to say even a small corporate won't do that. Then when next comes 10 lakh is about 6.3 and we'll not talk about below that. Next issue is in numbers. $18,299 bonds have been sold in numbers, of which again I said 9,201 are of 1 crore value, 6,298 are for 10 lakh value, and so on. Now, amount printed, I think this is some of those incidents I must say, that there was a letter from when this plan was going on for making it. General Secretary of present party wrote a letter to Arun Jaitley saying that people on the field like to donate it, so let's print some small amount of 1,000 and 10,000 in more. I don't know how did he know what's happening, but notwithstanding, when they printed 2,65,000 each for 1,000 and 10,000. And as of today, for 1,000, only 56 have been sold out. And for 10,000, it's 169. The cost of printing of each EB is 25 rupees plus transportation plus 18% GST. Now, so they have got some balance left. It was done in 2. For 1 crore is 5,449. They make a quick print. And total balance left is 64,000. These are few data you wanted it. Now, I think our friend from another activist has spoken about the printing cost. So rupees 1 crore 86 lakh 5,720 was spent for this print so far, which is being paid by taxpayers. Other thing comes to commission. That's a very interesting facts of commission.
While the State Bank of India has refused to give how much commission, they give entire information except for the commission. And CSE withstood it. And in my submission, I attached that entire commission data, which I received from the Ministry of Finance Department. This was ridiculous that you have in submission data already been provided, and thereafter also CIC order, I have received data from Ministry. This is ridiculous situation with the information commission. Now, commission till 18 phases was 5 crore 48 lakh 4,209. And now this is till 18 phases, which is by reply from the Ministry of Economy. In 19 phases, this will be interesting to know that when we come to digital, the commission was, which was 1,000 something, we are talking of Bihar election. The commission itself was UP 79,26,321. Now, how do they calculate? This is more important to know, which we went into depth and recently I recovered. Because they say we can't give you because there is a competitive thing that 81D they use. So did CIC use. But now we found out they're charging based on the RBI rates. There was one circular in 2012 which laid down the rates for physical as a 50 rupees and 12 rupees for digital transaction and 5.5 paisa per 100 for redemption. Then came in 2019 another RBI circular on 20th June 2019, which changed the rates from 12 digital from 12 to 9 and physical from 50 to 40. But on the other hand, for redemption, they changed the rate to 6.5 paisa from 5.5. So a lot of difference comes when you buy in crore paisa. So this is what I'm just telling you. Now, this I told you 19 phase, and 19 phase has 2,778 bonds were purchased through physical transaction and 1,219 by digital transaction. And till 18 phase, Commodore Batra, can I request you also जो आप डेटा दे रहे हैं आप अपने थोड़ा सा हिंदी में भी साथ में बता दीजिए, बीच में थोड़ी वॉइस ब्रेक करती है तो मैं वो एग्जैक्टली आई डोंट वांट टू मेक दोबारा से चलता हूँ, मैं हिंदी में ही चलता हूँ, मैं कल वो आसानी रहेगी। अभी तक जो हम लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का बेचे गए हैं उनकी कीमत है 9,856 करोड़ 72,46,000 रुपए के, जिसमें से 9,201 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं वो 1 करोड़ की वैल्यू के हैं, जिसका मतलब है कि 93.347% is only 1 crore. So we know which kind of donors are giving it. It has to be larger corporates, and they'll be quid pro quo without saying. I mean, I make no hesitation, because otherwise even a small corporate will not give. Like 10 lakh was very small, 6% or something remaining. I'm not even talking. ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, सॉरी मुझे हिंदी में बताना चाहिए था कि 93.35% जो है वो 1 करोड़ की वैल्यू के गए हैं, और उसको कौन खरीद सकता है आप और मैं जान सकते हैं। और उसके बाद जो प्रिंट हुए थे उसके बारे में मैंने बताया कि एक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का पत्र आया था अरुण जेटली जी को, जब ये स्कीम बनानी थी कि शायद हमारे फील्ड में छोटे अमाउंट के चाहिए हमें, तो उनका कहना था कि वी नीड 1,000 और 10,000 करोड़ के जो हैं छापने चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा छापे गए थे 2,65,000 दोनों के, और आज की डेट में 1,000 के सिर्फ 56 बिके हैं, शायद उसमें से 2 पूनम अग्रवाल जी ने खरीदे हैं, इफ आई नो द टेस्टिंग के लिए, 1,069 जो है 10,000 के। तो बाकी आप समझ लीजिए कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये डेटा आपको सब कुछ बता रहा है। दूसरा मैं ये बता रहा था, जो प्रिंटिंग कॉस्ट का मुद्दा पहले भी लाया गया था, आज तक जितने भी प्रिंट हुए हैं उसका खर्चा है 1,86,05,720 रुपए, और ये जो पैसा है जो सरकार ने अपने कंसोलिडेट ने पर्टिकुलर हेड से दिया है, प्लान्ड हेड से, जो कि जवाब में मुझे मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से,
और ये मतलब in other words this is a taxpayer. As we say, billionaires buy and pay nothing as a service charge or commission, what you call it. Political parties get this money on a tax-free basis. It's the taxpayers who are paying for this kind of thing. That is a very important issue which must be brought up. और इसके ऊपर बहुत डिस्कशन था, मैं जब फाइलों में देख रहा था, और जो कमीशन लग रही है जिसको सर्विस चार्जेस भी कह सकते हैं, 18वें फेज तक जो लगी 5,48,04,209 रुपए, और ये भी टैक्स पेज पे कर रहे हैं। और उसके बाद ये 18 फेज तक का तो डेटा मिनिस्ट्री ने मुझे खुद दिया है और हेड का भी दिया कहाँ से है, पर जो नेक्स्ट फेज था उसका जो कमीशन था वो है 79,26,320, इसके ऊपर जीएसटी लगा। तो आज की डेट में समथिंग, अगर मैं नेक्स्ट फेज का भी बताता हूँ, तो आज की डेट में 7 करोड़ के करीब कमीशन है जो टैक्स पेयर्स पे करें। इसके अलावा ये लास्ट फेज जो 20 हुआ था अप्रैल में ही, जिस लास्ट महीने में खत्म हुआ था, इसमें भी जो कमीशन है 79,26,000। ओके, प्रॉब्ली आई वाज रीडिंग दिस, पहले वाले में ज्यादा होगा क्योंकि उसमें 1100 कुछ बिके थे। तो ये दोनों का है डेटा है, बिकॉज टिल 20th phase I have received data from the ministry. What is alarming is the ministry gives you all the information except donors. सब जो मांगते हैं वो मिल जाता, सारी फाइलें मिल रही हैं आराम से। तो ये आ गया, ये था 42,30,028 रुपए, ये इस फेज का डेटा। और इसमें जो हुए थे डिजिटल थे 567, फिजिकल ट्रांजैक्शन थी 244, और जो 18 फेज तक जो मैंने एनालिसिस किया था, 47% सेल ऑफ फर्स्ट 18 वाज ऑफ फिजिकल ट्रांजैक्शन। तो ये विपुल जी को बता रहा हूँ, डिजिटल की बात की थी पर सब फिजिकल। उसके बाद कुछ और मुद्दे हैं, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूँगा क्योंकि आपने सब बता ही दिया। देखिए, पहली बार जब ये 26 मई 2017 का लेटर, थैंक्स टू पूनम जी, प्रिंटेड दैट। आई थिंक इट्स बेटर पूनम जी एक्सप्लेन how did we get this information. I was involved with that, but credit must go where it's due. बिहार दुर्वे एक पूना बेस्ड एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कुछ आरटीआई किया था, और जो उनके पास जवाब आया इलेक्शन कमीशन से कि 2 रुपए या 4 रुपए भेजिए, तो ही सेंड मी अ मैसेज. So somehow I was not immediately possible. I said, give an authority letter. So authority letter was given to Poonam Agarwal ji, and a copy was sent to Election Commission. Then she went to there and collected that letter of 26th May. And that is the first time it was printed. So credit goes to Bihar. उसके बाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको फॉलो अप करने में कितने आरटीआई करनी पड़ी इलेक्शन कमीशन में और कितनी करनी पड़ी मुझे. कुछ डेटा है मेरे पास, मैंने कल कलेक्ट किया था, जस्ट 1 सेकेंड, डिफरेंट प्लेसेस पे है. इलेक्शन कमीशन में पहली आरटीआई 7 मई 2018 में गई और आखिरी आरटीआई जो मेरी थी दैट वाज 20th इन नंबर 28 मई 2019. आइडिया ये था कि उनकी फाइलों में कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे उनका जगह बदल, कहते हैं हजूर बदल रहे हैं ना राजा बदल रहे हैं उनके, या कमिश्नर बदल रहे हैं, उसके साथ साथ विचार चीजें भी बदल रही थी. तो एक पत्र मुझे लिखना पड़ा, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है. सीईसी को एक पत्र 11 मार्च को लिखा गया चीफ इलेक्शन कमीशन को. तो मैंने उनको कंसर्न ऑफ अमेंडमेंट में याद कराना चाह रहा था कि ये लेटर आपने, ये 11 मार्च 2019 को लिखा गया था कि आपने क्या किया था 2017 को, क्या लिखा था. So I wrote, I am directed to draw your attention to Finance Act 2017, which had introduced blah blah blah. The ECI had found serious flaws in respect of this amendment. At the end, it has covered would lead to increased use of black money for political funding. And in the context, as a responsible citizen, I had filed RTIs, followed up that letter of 26th May with Legislative Department Law Ministry
that is Law Ministry, Department of Economic Affairs, and the Revenue. In Department of Economic Affairs, one of the division also said they agree with the that their name will be story was done on that also. But unfortunately, other than Revenue, nobody has replied, and Revenue is the one who I think conceived the whole idea of electoral bond and later on passed into Economic Affairs. And we have the file of economic. So at least 3 times, Revenue sent my RTIs back to Law Ministry. Law Ministry said, "What are you doing?" 3rd time, I'm sending you back. We are asking your views on this. So this is where, and I also asked Election Commission that I did not find any reminders from you to Law Ministry, that is Legislative Department, DA or anybody. During this period, I was sharing, when I filed an RTI in Election Commission, after that the entire file was shared with Legislative Department, and their file was shared with Department of Economic Affairs. And then later on it went to Revenue. But what happened in between on 18th August, as I think Neha ji already mentioned, 18th August 2018, MP Mohammad Nadimul MP asked some question where the MOS said, मिनिस्टर जी ने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ पत्र के बारे में. I was shocked. It was released to, because entire, even if nothing was there, my documents are lying with the department. Somehow they, I don't know, कैसे, they found out my contact. Somebody came and took some copies of this letter, and the same day, privilege notice was filed. Even Law Ministry says now session is over. This is the last day of session. Law Ministry this thing, but I questioned. I talked to Rajya Sabha concerned people. They say this, once a privilege motion is there, even if the house is closed, it will continue. So you have to do a little talking also with people. It is only after these documents are brought to the notice and this letter, तब तक MOS बदल गए थे. Finally, they said it was not deliberate. They said sorry, and they issued a correction. To that, which a new reply will be posted. There also there was a problem. Today we learned that Lok Sabha and Rajya Sabha, the question answer, uploading and other things are the responsibility of respective public authority who have been given said add-in pass. And दूसरा ये पता चला कि जब कोई करेक्शन होती है, यहाँ तो वो मंत्री जी के था, वो मंत्री जी जब सेशन में डाले, उनकी एब्सेंस में सेक्रेटरी जनरल हैज टू डिसाइड whether to do it or not. It happened in another case of RTI, where I provided my file to both Secretary General as well as DOPT to correct that letter. That was about the NRS. So here just between I am just talking. So ये सारे के सारे लेटर मैंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिए कि वो आइडिया ना बदले. मैं इसलिए अब हिंदी में ही चल रहा हूँ. उसके अलावा जो RTI फाइल हुई, मैंने आपको बताया 28 बीच की तो बहुत RTI थी, हर बार उसी फाइल का अपडेट लेते रहो. और फिर मैंने RTI किया, जो मैंने पत्र लिखा CEC का, उसका क्या, किसने क्या एक्शन लिया, क्योंकि वो गया था डायरेक्टर लॉ तक, who decided it. So fortunately nothing was changed. Last was 28 May 2019. Now 17 से हम 19 में पहुंच गए हैं, बीच में 18 और RTI थी. उसमें ये था कि वो एफिडेविट फाइल करनी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेकेंड हियरिंग के बाद. Fortunately I was sitting there. They issued a signed in front of me. Affidavit was signed by the concerned secretary on 30th of May. Some extra lines were added, and they gave me the copy there and then. However, few days later, Neha ji would remember that was withdrawn, their affidavit, and 3 lines were removed from the previous affidavit to say we stand by our earlier issue. So that was very important one. Along with that, now when Neha ji talked about 12th April 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर मामला है, पर 30 मई तक और 31 मई तक सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिले हैं उसकी डिटेल देनी चाहिए. तो उन्होंने एफिडेविट की कॉपी तो थी, साथ के अटैचमेंट भी थी. उसमें 105 सील लिफाफे दिए, जिसमें से 4 लास्ट जो सील लिफाफे हैं उनमें पार्टियों का नाम भी नहीं था. अभी हम प्रेज्यूम करें या ना करें कि इसके अंदर क्या इन पार्टियों को इलेक्शन बॉन्ड मिले थे, क्योंकि उसमें से अनरिकग्नाइज्ड जो पार्टी थी,
जो अनरिकग्नाइज 64 पार्टीज 67 में से एडीआर के डेटा के हिसाब से उनको 1% वोट नहीं मिला। या मैं वापस रिपीट करता हूं कि कल अगर आपको इलेक्शन बॉन्ड आप तभी एलिजिबल है कि आपको आखिरी जो आपकी इलेक्शन हुई है उसमें कम से कम आपका वोट शेयर 1% होना चाहिए। इसके ऊपर काफी आरटीआई हुई, क्विड ने स्टोरी लिखी, मैंने स्टोरी लिखी, किसी न्यूज क्लिक ने स्टोरी की, एसबीआई से पूछा गया भाई ये तो 105 है तो आप क्या चेक करते हो, हाउ डू यू चेक? The question is eligibility has to be checked by SBI for that 1%. Now they replied that we check it just from 2 days or 1 day before start of next phase. My question is, that means you are going through all the accounts of all political parties to start with. But why it should be just after that anybody ineligible party got it? Another interesting thing happened. To get your money or donation, you had to open a current account, which is special. There was a special by FBI had put some clause that you can't put the money in another account. So मैंने उनसे जब पूछा एसबीआई के भी बहुत एप्लीकेशन है, तो उन्होंने कहा कि उसको हम अगर किसी को नहीं मिला तो हम उस करंट अकाउंट को बंद कर सकते उस पर्पज के लिए। करंट अकाउंट तो चलता है डोनेशन के पर्पज के। और लास्ट पार्ट एक और भी आया था कि आज 105 लिफाफों की बात चल रही है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने मार्च में बताया कि सिर्फ 22 ऐसी पार्टियां जिन्होंने आज तक रजिस्टर किया करंट अकाउंट, और अप्रैल में 23 पार्टी। आज हमारे और मैंने पार्टी दूसरी आरटीआई में तो मांगा था नाम भी, नंबर आपने दिए, मुझे नाम भी दीजिए, क्योंकि जब आप ऑडिटेड रिपोर्ट करते हो आपको तो नाम आ ही जाएगा पब्लिक। आज की डेट में हमारे पास 20 ऐसे हैं पार्टियों के नाम है 23 में से जिन्होंने ऑडिटेड रिपोर्ट भेजी है। 19 का नाम तो मैंने अभी अमिता जी के व्हाट्सएप पे भेज दिया, वो आप सबके साथ शेयर। मुझे ये डर लग रहा था, मेरी लाइट जा चुकी थी, नेट चला गया तो बाहर जाने से कुछ इंफॉर्मेशन चली। कुछ ऐसी बातें, ये लेटेस्ट ही आया है अभी, और वो आपने शायद जिक्र कर ही चुके हैं कि 2018 में नोटिफिकेशन बहुत ही क्लियर था कि आप इतनी बार खोलेंगे, सिर्फ 30 दिन के लिए ज्यादा खोल सकते हैं जिस दिन जनरल इलेक्शन, बाकी 4 ही फेज में सिर्फ 10 दिन के लिए ही, जो कि आरबीआई ने सिर्फ एक ही स्लॉट कहा था साल। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने उन पीरियड में जो नहीं ड्यू था, पहली बात तो जनवरी में ड्यू था, इन्होंने नोटिफिकेशन 2 जनवरी को इशू किया था 2018 के। उसके बाद तो प्रिपरेशन शुरू हुई थी, तो मार्च का तो बनता ही नहीं था। इफ यू मिस द जनवरी, मार्च में होना ही नहीं चाहिए था। पहला सेल मार्च में हुआ था, और पहली जो 2 या 3 सेल हुई है वो सिर्फ 4 बैंकों में, 4 मेट्रो बैंकों में। रिक्वायरमेंट केम, सम आरटीआई केम टू देम कि बढ़ाइए, फिर 11 में हुई। तो ऐसे करते करते 29 बयान जो है काफी लेट, तो वो डेटा उसके हिसाब से भी देखा जा सकता है। और खाली आरबीआई ने नहीं रजिस्टर किया, जो कि जिस दिन बजट स्पीच थी उसके 2 दिन पहले, शायद मैं याद कराना चाहूंगा जो स्टोरी लिख चुके हैं, सडनली उनको याद आया कि आरबीआई को भी लिखा जाए। आरबीआई ने वीकेंड में पूरा काम करके इसको रिजेक्ट किया। तो एक हमारे सेक्रेटरी जी हैं जो डीए में थे, उन्होंने कहा शायद आरबीआई को समझ नहीं आया, और क्योंकि अब हमारी स्पीच तैयार हो चुकी है तो लेट्स गो। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ आरबीआई रिजेक्शन। तो खाली आरबीआई नहीं था, इलेक्शन कमीशन के बाद में कर चुका हूँ, पर उसका स्लो प्रोसेस ये था कि इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा 2 साल सोए रहे जिटिल माई आरटीआई, दे डिडंट टेक एनी एक्शन। सिमिलरली अदर पीपल से वी डोंट इवन हैव दैट। रेवेन्यू वाला तो मानता ही नहीं, क्योंकि सारा कंसीव ये रेवेन्यू में हुआ था। उसके अलावा Commodore Batra, if you जस्ट can लास्ट wrap लाइन up. कहूंगा, लास्ट कहूंगा, ये 3 पार्टियां ने, इवन लॉ मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लिया था जब प्रॉमिसरी नोट की बात की। जब 3 बार उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो उनको बुलाया गया कि आप मिनिस्ट्री में आ गए, तो इट्स लाइक बुलडोज। एंड वो ही नहीं हुआ, जब नोटिफिकेशन बना तो एसबीआई ने ऑब्जेक्शन दिया। उनकी लैंग्वेज पर बहुत ऑब्जेक्शन थे, और खासकर ऑन दी सबमिशन पे और लैंग्वेज एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्टोरल, जो दैट वाज आल्सो बुलडोज। And they did not write anything about, they say we need commission and should be paid by the donor. So that letter was clear. And I think nothing much is there to add. बाकी तो आपको सबको पता ही है, आप बात कर चुके हैं weakness of electoral bond, because it's a promissory note, is like a currency note,
how many time it can change hands. And this is what RBI has said. The longer the period you give, the chances of number of hands. एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये कि 10 करोड़ के 2-2 वाला 24 मई को बैंक में पहुंचे, वो कह रहे हैं आपकी टाइम लाइन 15 दिन की खत्म हो गई। तो वो एक चिट्ठी लिखी गई थी स्टेट बैंक को 24 मई को ही चेयरमैन स्टेट बैंक ने एक पत्र लिखा दिए को सारा लेटर प्रोसेस होके उन्होंने कहा इसे वन टाइम क्लियरेंस, इट इज लाइक कैलेंडर डेज नॉट द वर्किंग डेज। सो उसमें से एक एलिजिबल हो गया था, कैलेंडर डेज के हिसाब से 10 करोड़ जमा किए गए। आप देखिए, वैसे तो कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं करती, और जब 2 आदमी पहुंचे वहां अपना कैश करने, तो पार्टी का नाम तो पता चल ही गया होगा। अब किस पार्टी के 10 करोड़ हुए तो आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें चली हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सब लिखा जा चुका है। और एक 11 करोड़ के जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए, जो हमारे छपे हुए हैं 11 करोड़ के और 1,000 के, और वो पूरी इन्वेंट्री हमारे पास है। जो अपडेटेड इन्वेंट्री की CIC ने कैंसिल कर दी। अभी मैंने उनको प्रूफ दिया, ये देखिए, ये पूरी DA की फाइल डाल दी मैंने लिंक कर। नो, सो दैट CIC के decisions also questionable. Maybe that he was a secretary in the Ministry of Finance as a investment secretary, and he is retiring in 2 months. So I'm not saying, but a lot of stories we have done it. Even one was printed yesterday on this RBI rates. So there's no competition. If every bank use the same rates, where is the question of competition? Thank you so much. Thank you for giving me time. थैंक यू वेरी मच कॉमोडोर बत्रा। और आपने हिंदी अंग्रेजी दोनों में डेटा शेयर किया, बातें शेयर की, इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ में अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आई थिंक इट इज so tremendously important that whatever information we can actually get about this scheme, about these electoral bonds, be put out in the public domain. इतनी ज्यादा गोपनीयता, इतनी ज्यादा opaqueness इस स्कीम के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बनाई गई है, और किस तरीके से ये लोकतंत्र की नींव को ही खत्म कर रहा है। ये हमने सभी वक्ताओं से सुना, कॉमोडोर बत्रा ने हमारे साथ अब तथ्यों के साथ भी शेयर की है चीजें। मेरे ख्याल से जो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज है यहाँ याद रखने की, वो ये है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर हम सोचते हैं कि लोगों का तंत्र है, लोगों को वोट करना है, वो जानकारी के बगैर, पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी के बगैर नहीं हो सकता सही मायने में। आप ब्लाइंड वोटिंग कराएंगे तो क्या फायदा है? चुनाव करने का ही देश में ढोंग हो जाएगा, एक फायदा कुछ नहीं रहेगा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम्स और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा तंत्र है वो लागू रहता है। जरूरत पारदर्शिता की है। सूचना के अधिकार कानून के तहत कॉमोडोर बत्रा ने जो तमाम सूचनाएं निकाली उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, लेकिन कितनी सूचना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, किसने दिया, कितना पैसा दिया, किस पार्टी को पैसा दिया, ये सारी सूचनाएं लोगों के सामने होना बहुत जरूरी है। सूचना के अधिकार कानून के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, सूचना आयोग जो केंद्र पे है, उन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिक ऑर्डर भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज जो है हमारे देश में, उन्हें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को नियुक्त करना चाहिए। द सेंट्रल Information Commission had given a historic order in which they held that political parties, 6 national political parties, they held them to be public authorities under the RTI Act and said that they should appoint public information officers. Unfortunately, till date, none of the political parties in our country have actually gone ahead and complied with the order of the Central इंफॉर्मेशन कमीशन। सो आज तक ये बहुत ही दुखद बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक नहीं मानी है CIC का आदेश, और उन्होंने पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार के तहत आने की से इकरार नहीं किया है। और इसका मतलब, इसके ऊपर से जब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम आ जाती है, तब तो हम ये कह रहे हैं कि जो बची कुची पारदर्शिता भी है पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में, वो भी खत्म हो रही है। जो बची कुची पारदर्शिता है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसका पूरी तरह से
हनन हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे आज हमने इतने स्पष्ट रूप से हमारे वक्ताओं से सुने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉमोडोर बत्रा। आप शेयर करिए, आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने इतनी पेनस्टेकिंगली इतने सालों से आप इकट्ठे करते आ रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी जो तमाम केसेस चल रहे हैं उसमें सूचना के अधिकार कानून से इस्तेमाल करके जो सूचनाएं बाहर आई हैं उन्हें लगाया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इसके ऊपर कुछ करेंगे भी। मैं अब फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई अपनी बात रखना चाहे आप प्लीज अपनी बात रखें। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कमेंट और अ क्वेश्चन। अगर कोई कुछ भी कहना चाहे, कुछ सवाल पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे, आप प्लीज रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठाएं और अपनी बात रखें। राजेंद्र जी। हाँ, जिंदाबाद। मैं बस अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि जहाँ लोकतंत्र के सारे खंबे फेल हो जाते हैं, फिर हमारा जो जनतंत्र है, जो हम लोग हैं, फिर वो क्यों ना हम इसको मेन कोर्स में लेके आए और पब्लिक की समझ में लेके आए। लोगों के जुबान पर जब बात आएगी और अपने लेवल पे हम लोग काम करें, जहाँ पे भी जितना भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से सभी का यहाँ पर अभी वक्ताओं का भी सुझाव था, और आपने भी ये बात रखी है कि जब तक लोग ये राजेंद्र जी हैं, दिल्ली में बालिका ट्रस्ट के साथ राजेंद्र जी काम करते हैं, सभी मुद्दों पर सक्रिय हैं। मीरा ने कहा कि अपना परिचय दे दें, तो मैं ही दे रही हूँ राजेंद्र जी का परिचय। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मीडिया में तो उस पर पूरी चुप्पी है और रहेगी। मीडिया का कंट्रोल आज कहाँ पर है, किस चीज के लिए मीडिया काम कर रही है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में हमारा ही दायित्व है कि हम सब अपने आप को इन सब मुद्दों से परिचित कराएं और एकत्रित होकर, संगठित होकर हम इस मुद्दे को उठाएं, वरना लोकतंत्र को बचाना नामुमकिन है। कोई और अगर अपनी बात रखना चाहते हैं? Hi, can I say something for a quick minute? This is Suresh here. Yes, Suresh, please go on. Please, Ken. Yeah, this was a wonderful session, similar to how all the other sessions had been so far on electoral bonds. I think it's, we passed the time to do something at a national level, like call for action against in multiple states. I think we have to do something along the lines of, some people's movements against electoral bonds, or we should even call these as corruption bonds, no longer call them as electoral bonds. And then have some like really a mass public movement, something like the anti-corruption movement that happened in 2010-11. Along those lines, I think if we follow the money, we'll get a lot of answers. So it has to be done at that stage. I just don't know how that can be done, but I think it has to be done at that stage. Absolutely. Thank you, Suresh. सुरेश कह रहे हैं कि कॉल फॉर एक्शन की बहुत सख्त जरूरत है। राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इससे मुद्दा बनाकर हमें मुहिम चलाना होगा। बल्कि उन्होंने कहा है कि इनको भ्रष्टाचारी बॉन्ड बोलना चाहिए, चुनावी बॉन्ड नहीं बोलना चाहिए हमें इन्हें। और लोगों के बीच इसके बारे में आवाज जब तक नहीं पहुंचेगी और लोग फिर जब आवाज नहीं उठाएंगे तो काम नहीं बन सकता। तो सुरेश ने भी यही कहा हमें। अब कोई और अगर अपनी बात रखना चाहें, यू मे प्लीज रेज योर हैंड। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट द स्पीकर्स टू गिव देयर फाइनल कमेंट्स for in 2 to 3 minutes. Poonam, can we start with you? Poonam, आप अपनी final comments 2 minute में रखें। Yeah, so all I want to say is that certainly, as Rajendra ji has said, that it should be called as corruption bonds for the simple reason that this has become a tool
to bribe the political parties and the government, or the political party which is in power. And that is why it is this scheme needs to be stopped as soon as possible, because otherwise we will never know how and who all got benefited through these bonds. And interestingly, now there are further, as Mr. Batra has already pointed out, that even in the CIC and in other aspects, there have been efforts being made that no more information may come out from the Election Commission office or from the SBI or from the Finance Ministry. So, this entire effort to curtail information, source of information, is again a very important thing that we cannot overlook. And people like Mr. Batra, who've been working on this issue from day one, he has filed so many RTIs and he's been chasing. It's not even easy. So when citizens like Mr. Batra, they're putting in so much of effort just to expose, without him, probably many things wouldn't have ever come out in the public domain. So now it's the time that the judiciary should come forward and make an effort that, yes, this, at least hear the matter properly and take proper action and pass proper orders, so that, some changes are being brought in. And secondly, I would say that till now, what we have seen is that the government brought it, was saying that this bond will help all the political parties, irrespective of national or state level or regional level political parties, to get electoral bonds and the political funding. But there is a story I'll just tell briefly, which is going to come out very soon, and it is on electoral bonds, which will actually tell people that it is not the small political parties who are getting any benefit out of electoral bonds, and it's only the big ones who are getting the donation. Although the government claimed that these small political parties will also get the bonds. So these are few facts which are there, which government cannot deny. Nobody can ever deny this. So it is important that these things, they come out, they keep coming out in the public domain, and discussions like these keep happening, so that it is there in public memory. And eventually, I'm sure the judiciary will also come forward to take action on this matter. थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। और आपने यही बात कह के अपनी बात को समाप्त किया है कि ये जो चुनावी बॉन्ड है, ये तो जो अभी पावर में है, उनको हमेशा पावर में रहना का एक जायरा बन गए हैं। और जब तक कि हम नहीं इन चुनावी बॉन्डों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सूचनाएं निकालने की कोशिश करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, तब तक जुडिशरी भी इसके ऊपर एक्ट करने की जरूरत है। जुडिशरी को वो भी, उसके ऊपर भी दबाव तभी आएगा जुडिशरी पर भी, जब लोग इकट्ठे होकर इन चर्चाएं करेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे और दबाव बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम। नेहा, आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स इन 2 minutes प्लीज। मैं आप सभी की बात से सहमत हूँ कि ये मूवमेंट एक्चुअली ज़मीनी तौर पर लाने की ज़रूरत है, जिससे सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी का भी को भी समझ आएगा कि ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी और कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में ये इतनी बड़ी चीज़ है कि दिस हैज़ बिकम अ लीगल सॉर्ट ऑफ अ स्कैम। नाउ नोबडी केयर्स कितना पैसा कौन सी कंपनी, कौन सी कॉर्पोरेट, कौन सा बिग कॉर्पोरेट हाउस किस पॉलिटिकल पार्टी में लगा रहा है। थोड़ा मुझे ये भी लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा इशू है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब नॉट एवरीबडी, हर किसी को एकदम आसानी से समझ नहीं आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाएं, जिससे ये समझ में आए। इतना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी से हटकर एक सिंपल तरीके से लोग इसके बारे में ताकि बात कर पाएं और मीडिया इस इशू को कवर कर पाए। अभी मोस्टली लीगल रिपोर्टर्स एट द मोस्ट समझते हैं कि अच्छा कोर्ट में क्या हुआ या क्या आर्ग्यूमेंट की जा रही है। इट हैज़ टू बी ब्रॉट इन द मेन स्ट्रीम by using simple terminology, simple language. Court may not, it's important to take these issues to court, and वो तो चलता ही रहेगा, just like RTI activists का काम भी इतना ही important है, वो भी continue कर रहे हैं, मीडिया का भी। But once it's in the mainstream,
जैसे कोई भी करप्शन मूवमेंट होती है, तो आई थिंक इट विल रियली हेल्प. It's important to simplify it, I think. Thank you so much, Neha. और जो आपने कहा कि this has somehow become like it's got a legal stamp almost, this kind of an instrument, and I think that it's very important. जो आपने जो आपने बात उठाई है कि बहुत सारी ऐसी रिग्रेसिव चीजें हैं जो बहुत ही टेक्निकल तरीके से हमारे बीच में लाई गई हैं. ये इस सरकार की एक बहुत क्लेवर, जिसको कह सकते हैं, तरीका है, जिसमें चाहे वो आरटीआई के संशोधन है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी को इवेड करने के जो तरीके अपनाए गए हैं वो बहुत ही तकनीकी तरीके से अपनाए गए हैं. तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कौन से 4 कानून को आपने संशोधित किया, कैसे किया, कौन सा सेक्शन संशोधित हुआ, वो लोग जब तक कि वो उससे एंगेज करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये हम नहीं समझ पाएंगे आसानी से. तो बहुत जरूरी है ऐसे में कि हम इसको ब्रेक डाउन करें, आपस में चर्चाएं करें, क्योंकि ये कितना भी तकनीकी इशू है, लेकिन अंत में ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है. और जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ के एंगेज नहीं करेंगे इस मुद्दे पे, इससे हम भाग नहीं पाएंगे, इससे हम छुटकारा नहीं पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद नेहा आपका जुड़ने के लिए. आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट विपुल, इफ यू कैन प्लीज गिव योर क्लोजिंग कमेंट्स इन द नेक्स्ट 2 minutes. थैंक यू. मेरा अपना मानना यह है कि चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा. दूसरा ये हो रहा है कि ये डू और डाई बैटल है, कि मतलब कुछ भी हो जाए, हर हालत में जीतना है. चाहे आपको कोई टेररिज्म के केस में कोई लिप्त है, उसे टिकट देना पड़े, या फिल्म स्टार को टिकट देना पड़े, या आपको जाति संप्रदाय ये वो जो कुछ करना चाहे आप, ये इलेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है कि ऐसी कला बनती जा रही है कि जो फॉर्म ऑफ आर्ट है, फॉर्म ऑफ साइंस है, फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, सब कुछ रोल्ड इनटू वन. इलेक्शन एक ऐसी चीज बनती जा रही है. और हम लोग जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बस अपनी एक छोटी सी चीज, पारदर्शिता और जवाबदेही को इसमें नहीं तैयार कर पा रहे. वी नीड बोथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज टू बिकम अ काइंड ऑफ not just the movement but the bedrock of all activism, because we understand that whatever else is going on, look at just elections, all other things around elections like disinformation, misinformation, hate speech, all kinds of polarized speech, the misuse of digital platforms, etc., etc. Everywhere money is involved, everywhere illegality is involved, and the only way to fight it is, I mean, it's good if we get a good order from the Supreme Court. Otherwise, I think the fight of transparency and accountability will have to be taken forward in whatever way possible. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया विपुल. एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, विदाउट every single campaign movement sort of bringing it into its fold, this demand, इस पारदर्शिता और जवाबदेही के डिमांड को अपने फोल्ड में लाए हुए आगे हम लोकतंत्र की बात कर नहीं सकते हैं. फाइनली, क्योंकि अभी संदीप, मेरे ख्याल से संदीप जी का कनेक्शन ब्रेक हो गया था, मैं कॉमोडोर बत्रा को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बात 2 मिनट में प्लीज रख लें. कॉमोडोर बत्रा. 30 सेकेंड. मेरा ये कहना है कि मैं सबसे सहमत हूँ, परंतु कुछ एक और इंटरवेंशन की जा सकती है, खाली इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए. ये लास्ट जो विपुल जी ने बोला, आप
कोई याद होगा, आपने भी मुझे एक केस में आप रिप्रेजेंट किया था इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की CIC में। उसमें उन्होंने क्या डिसीजन में, जो 2 महीने पहले एक IC ने डिसीजन दिया था, उसको पलट दिया गया था। ये तो एक अलग बात है। दूसरी ये, जैसे अभी ये 2-3 ऑर्डर आए हैं ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड, where the information is in public domain made available, have been now made exempted by the CIC. Shouldn't we have collect together, call media, even if 1 or 2 media person come, give them the documents, expose them. Time has come to expose the regulatory body as well without hurting them like contempt case. We can say these are the documents. Call some small press conferences with those small documents. I think we need it. I was talking to, I think Poonam, we spoke about it. When these orders came, there's no way, because that should be challenged in the High Court later on. At least electoral bond cases will indirectly go to High Court. See, the matter will come. Legal media is still writing very well, be it Live Law, be it a bar and bench. All of them, these legal reporters are doing. Utkarsh from, I mean, I know all of them are doing, as far as they are not scared of writing. So I think we should take few of these cases using the CIC issue, first in the press conference and then file it. Let's see what happens. And we will put in these cases very clearly, documents were attached, because SBI case was much before Ministry of External Economic Affairs gave me the information. So whatever the files they gave me, I attached, and still the CIC says it's exempted. So these kind of cases definitely require to be spoken in a small little press conference and taken to High Courts. At least electoral bond case and the CIC case which you attended, appointment case, they overturned their own ICDP Sinha's case as well as their own first appellate authority. Lastly, because a lot of here who are doing it, please understand the order is prepared by the LC, except the decision part. I have seen his duty, that is legal consultant attached with each. Last 6 of the cases, I found the timeline was wrong. Like I had filed a first appeal, even that case is not there. It's there in the file. Because what I request them to give me an e-book, they call it e-book, just before the hearing. So I have all what we have put it inside. Now I've got a very important PM Care Fund case is coming up next month. And that is related to NIC. It's a foolproof case, but let's see how they behave. Sure. Thank you, Commodore Batra. Or ये Can I just say strategies. something? Just a small thing. अंजलि भारद्वाज, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा काम किया, सबको बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए और बहुत अच्छा संचालन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Vipul. और अमृता जी को भी, जो हमें अलाउ कर रही थी अंदर बाहर जाने के लिए, वो पूरा कंट्रोल रखा हुआ था, उनको भी पूरा पूरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बट कोमोडोर बत्रा ने हमें स्ट्रैटेजी की ओर इशारा किया है कि हमें सोचना पड़ेगा लीगल स्ट्रैटेजी भी किस तरह से अपनाएं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें जिनका काम है कि लोकतंत्र को जिंदा रखें, कि लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों के लिए और पारदर्शिता और जवाबदेही जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी तय करें, वो आज इंस्टीट्यूशंस हमें जब फेल करते हैं तो उन्हें भी चेतावनी देने की जरूरत है, उन्हें भी एक्सपोज करने की जरूरत है, और सिटीजन्स को ये काम करना ही होगा। तो कोमोडोर बत्रा ने जो बताया, इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, इलेक्शन कमीशन है, RBI है, मैं तो कहती हूँ सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें बहुत जरूरत है कि हम उन पे निगरानी रखें, और जहां पर भी जरूरत पड़े उनकी भी जवाबदेही फिक्स करें। तो इसके साथ में ये आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जिंदाबाद। और हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जारी रखेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये जाने वाला नहीं है। ये जुडिशरी से हमें इसका समाधान आसानी से नहीं मिलेगा जब तक जमीन पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक समझ नहीं बनेगी, और हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। राजेंद्र जी कह रहे हैं हम लड़े हैं जीते हैं, तो लड़ेंगे जीतेंगे
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी मुद्दे को हमें उठाना होगा और डेमोक्रेसी डेंजर में है। आज ये क्लियर वर्डिक्ट हमारे पैनल से निकला है, तो हमें उसके ऊपर जरूर कदम उठाने हैं ठोस। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा, ओवर टू यू नाउ। अरुंधति मुझे अभी नहीं दिख रही है, पर मीरा, ओवर टू यू। नहीं, अरुंधति भी है यहाँ पर, बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समापन अरुंधति एंड किया मीरा, है। थैंक यू एंड ओवर टू यू। No, I think समापन आपने किया है अंजलि. So thanks to you and Amrita as well for putting together this very very important session. And in fact हम हर महीने के अंत में इस प्रकार का institutional accountability पर एक सेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अंजलि और अमृता are constantly trying to curate it. क्योंकि ये बहुत हम बाकी मुद्दों पर बातचीत करने के साथ साथ हमें ये भी दिखता है कि ये पूरा जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस के मामले है, ये कितने व्यापक है और हमारे सभी बाकी क्षेत्रों के, हम भले किसी भी स्टेट में किसी भी मूवमेंट से हो, किसी भी इलाके में काम कर रहे हैं, मगर ये तो हम सबको प्रभावित करता है. एंड विच इज व्हाई ऑल ऑफ अस शुड बी एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड एंड कंसर्न्ड एंड आल्सो रिस्पॉन्ड टू दीज इश्यूज. दीज आर इश्यूज दैट मैटर टू ऑल ऑफ अस, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छे से आज आप सभी साथियों से सामने आया है. तो thank you so much to Commodore, Batra, to Neha, Vipul, Poonam, and Saurav ji, and of course Anjali for comparing and also translating wherever it was required so that all of us could stay in loop. So बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद, and अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे जमीनी आवाजों के सत्र में. सभी को जिंदाबाद. जिंदाबाद.